Hello and welcome back to the law lecture series of News Academy of Commerce and Maths. We all know that every company can have a freedom in three aspects. That is, the first one is freedom to entry, second is freedom to competition, and the third one is freedom to exit. And today we are going to talk about the third and the last point, that is freedom to exit, that is free to exit by the help of Companies Act 2013. Hi, I am Ajinkya Sandekar and I am presenting a very interesting and very important topic for the exams, either it is CMA, CA or CS, which is winding up. In our last lecture, we get to know that what is Insolvency and Bankruptcy Code and the procedure, lectures behind it, procedures, regulations behind it. And now we will continue that with the winding up. Yes, winding up is somehow related to this procedure. So without further ado, let's start with the introduction of the winding up. We can say that winding up is the first step of dissolution. There is a difference between the dissolution and the winding up. Winding up is the first step of dissolution and dissolution is the end result of the winding up. वाइंडिंग अप एक प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हम लोग सारे एसेट्स को बेचेंगे एंड सारे के सारे लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे. दिस इज द प्रोसेस इंक्लूडेड इन द वाइंडिंग अप. पहले वाइंडिंग अप होगा एंड वाइंडिंग अप के एंड में कंक्लूजन में इन ये डिसॉल्यूशन के बाद कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. कंपनी सीज टू बी एन एग्जिस्ट. सो वाइंडिंग अप को हम लोग बोल सकते हैं कि इज इनिशियल स्टेज एंड डिसॉल्यूशन इज द एंड ऑफ द कंपनी. So in difference between winding up and the dissolution is also we can say that is in winding up के बाद भी कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहता है, बट डिसॉल्यूशन के बाद कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट में नहीं रहता क्योंकि वो डिसॉल्यूशन के बाद वो स्ट्राइक ऑफ हो जाता है उसका नाम कंपनी के आरओसी के लिस्ट में से. सो एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर we need to know that this chapter number 20 is bifurcated in the 4 parts. And which are the 4 parts? Let's start with that topic first. Yes, these are the 4 parts for which we are going to talk about in this chapter. Is part 1 winding up by the tribunal, part 2 winding up by the voluntary, that is voluntary winding up, and the third one is provisions related to the every mode of winding up. मतलब ये पॉइंट जो होगा ये सभी प्रोविजन हर टाइप की वाइंडिंग अप के लिए वॉलंटरी हो या फिर लिक्विडेशन हो बाय द हेल्प ऑफ ट्रिब्यूनल. And the fourth point is official liquidator. Official liquidator means a liquidator which will be deemed helpful for the tribunal to complete the process of full liquidation, dissolution, winding up. This all process shall be completed by the help of 2 types of liquidators. That one is official liquidator and the other one is company liquidator. There are some minor differences between them. Otherwise, there are no differences between the official liquidator and the company liquidator. So we are talking about these 4 parts. And in today's lecture, we are going to talk about only part 1 and part 4. The part number 2, actually the part number 2 is omitted. The part number 2 is omitted. So we are not going to discuss this part because this part is basically abolished. So our course and the same, this topic, that is voluntary winding up, is continued by the help of IBC. So this chapter means this topic, part number 2, we had already discussed in the IBC, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. अपने लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था, जो अपन लोगों ने टॉपिक समझे थे वो कौन से समझे थे. सबसे पहला पॉइंट समझा था अपन लोगों ने कि कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. सेकंड पार्ट में अपन लोगों ने समझा था कि चार्ट क्या होगा, और नेक्स्ट प्रोसेस में अपन लोगों ने देखा था जो बचे हुए सेक्शंस थे, बचे हुए डिस्कशंस थे, टॉपिक्स थे, वो हम लोगों ने कवर किए थे. एंड देन फास्ट ट्रैक इशू एंड द लास्ट पॉइंट वाज वॉलंटरी लिक्विडेशन, एंड दैट इज द वॉलंटरी लिक्विडेशन व्हिच वी हैड शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू आईबीसी. मतलब उसको वाइंडिंग अप के प्रोसेस से हटा करके कहाँ डाल दिया गया, आईबीसी के अंदर में डाल दिया गया.
और अब इसलिए उसको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी आईबीसी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोगों को सिर्फ इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी होती हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, एंड we will continue this 2 topic only in this today's lecture. So let's start with the introduction of the winding up. The main purpose of winding up is to realize the assets and to pay the debts of the company expeditiously and fairly in accordance with the law, that is Companies Act 2013. वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में बेसिकली हम लोग यही समझेंगे कि हम लोगों को सारे एसेट्स को रियलाइज करना है एंड उस रियलाइज मनी को हमें किसी अपने डेब्ट को पे कर देना है, अपने क्रेडिटर्स को पे कर देना है। इन शॉर्ट देखा जाए तो हमारे पूरे इस प्रोसेस में सिर्फ इतनी सी ही बात समझनी है कि हम लोगों को सारे एसेट्स को बेचना है एंड सारी लायबिलिटीज को पे करना है, और अगर हमारे सारे एसेट्स खत्म हो चुके हैं एंड सारी लायबिलिटीज भी पे हो चुकी है तो हम लोगों की कंपनी को अब एग्जिस्ट रहने से कोई मतलब ही नहीं है, because we are not with position of a balance sheet. हमारे पास हमारे बैलेंस शीट का कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं होगा। अगर हमारे पास हमारे बैलेंस शीट ही नहीं है तो हमारी कंपनी कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो दैट्स व्हाई we will have to discontinue the business by the help of dissolution, which is the further steps of winding up. So actually there are near about 95 to 95 or 96 sections जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, बट इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमारे पास में 271 से लेकर के 303 सेक्शंस है, 271 to 303 सेक्शंस, एंड इन पार्ट नंबर 4 359 से लेकर के 365 सेक्शंस तक के हमारे पास में है। तो हम लोग को ये इतने ही सेक्शंस आज पढ़ने के हैं, एंड दैट सेक्शंस लेट्स बिगिन with this topic. Okay. एक्चुअली वाइंडिंग अप जो है हम लोग समझ चुके हैं कि वाइंडिंग अप क्या होता है। वाइंडिंग अप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें अपने सारे एसेट्स को बेचना है और अपने सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। अब जिसके लिए कुछ कुछ प्रोसेस होंगे। पहले हम लोग इस चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे किस किस प्रोसीजर के लिए लिएबल है, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द सेक्शन। चैप्टर को सेक्शन वाइज शुरू करने से पहले या फिर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर लोग बोल सकते हैं कि हमें इस चार्ट को समझ लेना चाहिए, बिकॉज द हेल्प ऑफ दिस चार्ट हम लोग उस सेक्शन वाइज जो चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग को वो बहुत ज्यादा इजी लगेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अपन को यहाँ पर भी कुछ कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन सी चीजें क्या क्या प्रेफर करने बोला जा रहा है यहाँ पर में। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है यहाँ से लेके फर्स्ट के यहाँ 272 सेक्शन जो लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट्स है ये है कंपनी और आरओसी, कंट्रीब्यूटरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वो पर्सन्स हैं जो यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनिशियलाइज कर सकते हैं। आईबीसी में भी अपन लोगों ने पढ़ा था कि कौन इनिशिएट कर सकता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही बोल सकते हैं अपन लोग कि कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो इनिशिएट कर सकता है। कौन इनिशिएट कर सकता है? तो कंपनी इनिशिएट कर सकती है बाइंडिंग के प्रोसेस को, आरओसी इनिशिएट कर सकता है, कंट्रीब्यूटरीज इनिशिएट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर में कोई नए वर्ड्स नहीं है जहाँ पर में हम लोगों को हर चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हु आर कंपनीज एंड हु आर आरओसी, कंट्रीब्यूटरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इनमें से कोई भी पर्सन अगर चाहे तो इन लोगों कंपनी के अगेंस्ट बाइंडिंग अप के लिए अपील कर सकते हैं टू होम टू द एनसीएलटी एज वेल। एनसीएलटी को इन लोग में से कोई भी कंप्लेन करेगा दैट कंपनी इज नॉट एबल टू कंटिन्यू, और हम लोग कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं कि कंपनी को एग्जिस्ट में रहने लायक ये कंपनी नहीं है, सो कंपनी को आप हमारे एप्लीकेशन के बेसिस पे बाइंडिंग अप के प्रोसेस में डालिए। तो ये कौन कौन इनिशिएट कर सकता है? तो इनिशिएटर्स ऑफ दिस प्रोसेस आर कंपनी इटसेल्फ, सेकंड इज आरओसी, कंट्रीब्यूटरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर्स। तो यहाँ पर हम लोग के पास 4+1 persons हैं who can initiate this topic. 4+1 means first one is company, second one is ROC, third one is contributaries, and the next one is central government and state government. And number 1+1 is any other person जो NCLT को सही लगेगा, NCLT इनिशिएट करेगी ऐसे पर्सन। ये सारे पर्सन होंगे जो लोग इनिशिएट कर सकते हैं हमारे इस बाइंडिंग अप के प्रोसेस को। अब ये लोगों ने एप्लीकेशन किया, किसको दिया था? एनसीएलटी को दिया, प्लस एनसीएलटी को दिया जाएगा
और भी हम लोग 3 पर्सन को और देंगे। वो कौन से क्रिएटर्स को भी ट्रांसफर करेंगे, कंट्रीब्यूटरीज को भी ट्रांसफर करेंगे एंड मोर ओवर ROC को भी ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे पास ऐसे कितने पर्सन हो गए जो इनिशिएट कर सकते हैं? तो 4+1। 4 कौन से होंगे? पहला कंपनी इटसेल्फ, ROC, कंट्रीब्यूटरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, +1 दैट इज एनी अदर पर्सन जो NCLT प्रोवाइड करेगा, नाम बताएगा। और ये हम लोग किसको किसको सप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली NCLT को तो करेंगे ही करेंगे। अपील किसको करेंगे? तो NCLT को करेंगे फर्स्ट। एडिशनली हम लोग को ये किसकी कॉपी किसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी? तो कंट्रीब्यूटरीज को भी करनी पड़ेगी, क्रिएटर्स को भी करनी पड़ेगी एंड ROC को भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक चीज चार्ट में लिखना भूल गए हम लोग, भूल गया हूँ मैं, दैट इज ROC को इसलिए दिया जाएगा कि ROC अपना रिव्यू देगी NCLT को रिगार्डिंग कंपनीज बिहेवियर एंड ऑल दिस, दैट कंपनी कैन बी सुटेबल और नॉट, कंपनी क्या डेप्थ है या नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन देना होगा ROC डीम्स फिट, वो सारी इंफॉर्मेशन NCLT को प्रोवाइड करेगी विद इन 60 डेज। तो अभी यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेना इसी चार्ट में, तो इजी रीड करने में और याद करने में इजी होता है। तो सबसे पहले फिर एक रिव्यू कर लेते हैं इतने से कोई कि कौन कौन कर सकता है। तो कंपनी का 4+1 मेंबर्स होंगे ना, 4+1 आप इसलिए बोल रहे हैं, टोटल नंबर 5 की नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि 5th वन इज अदर। So 4+1 जब भी अपन बात करेंगे, the 5th one is +1 will be deemed as others. Okay, तो 4+1 में सबसे पहले कौन? कंपनी itself, ROC, contributaries and the central government and state government या और state government। और +1 means other। अब ये किसको कर सकते हैं? तो NCLT को कर सकते हैं, ROC को कर सकते, NCLT को करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूटरीज को भी करना पड़ेगा एंड क्रिएटर्स को भी सप्लाई करना पड़ेगा एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज ROC को भी करना पड़ेगा। ROC उसको रिसीव करेगा एंड उस पर व्यू बनाएगा और व्यूज को वो सप्लाई करेगा, सबमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा टू द NCLT अगेन विद इन 60 days ऑफ रिसीविंग द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन which is also filed to the NCLT as well। After that NCLT के पास 90 डेज है, NCLT के पास 90 डेज होंगे कि वो ऑर्डर्स हमें प्रोवाइड करे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फिर 4+1 की बात करेंगे कि यहाँ पर NCLT 4+1 कौन से ऑर्डर्स हमें दे सकती है। फिर 4+1 का मतलब ये होगा कि +1 विल बी नोन एज अदर्स, कि अदर्स अगर NCLT को लगता है कि और भी कोई इनके अलावा, 4 नाम जो पढ़ेंगे अपन, उसके अलावा कोई और भी ऑर्डर दे सकती है, तो उनको लगता है सही तो वो अपने ऑर्डर चेंज कर सकती है, एडिशन कर सकती है। तो क्या होंगे वो 4 नाम, 4+1 नाम? पहला ऑब्वियसली वो डिसमिस कर सकती है और एक्सेप्ट कर सकती है, ये 2 हो गए। पहला वो डिसमिस कर सकती है, सेकंड वन इज वो एक्सेप्ट कर सकती है, थर्ड वन इज इंटरिम ऑर्डर दे सकती है एंड द फोर्थ वन इज प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है। और +1 अदर। तो पहला क्या होता है हमारा? पहला जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, ये 2। तो एक्सेप्ट मीन्स कंपनी ने आपके एप्लीकेशन को पढ़ा और लगा कि हाँ ये सारी चीजें सही हैं, या फिर ROC का रिव्यू कुछ सही था, मतलब कि अगेंस्ट नहीं था और एप्लीकेबल था, कि वो वो कंपनी लिक्विडेशन के लिए जा सकती है, वाइंडिंग अप के लिए जा सकती है, तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट किया जाएगा। ये 2 ऑर्डर हो गए। इंटरिम ऑर्डर या बीच में कोई पास ऑन करने के लिए कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, या द नेक्स्ट वन इज प्रोविजनल लिक्विडेटर दिया जाएगा कि अभी तक हम लोग आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं या रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या समझने में टाइम लग रहा है, तो आपके लिए प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा जो विच विल कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द एक्चुअल कंपनी लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड। तो हम लोग के पास 4+1 ऑर्डर्स आएंगे। पहला डिसमिस द पिटीशन, आपके पिटीशन को डिसमिस किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको आगे कंटिन्यू करने के पहले ये बताऊं कि अगर हम लोग कभी भी पूरे चैप्टर में या फिर पूरे एक्ट में, पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं भी अपन लोग अगर फाइल की पिटीशन की कॉपी अगर ROC को देते हैं, पिटीशन की कॉपी अगर हम लोग ROC को देते हैं, तो उसका एक ही मतलब होता है, 99% केसेस में एक ही मतलब होता है कि हम लोगों ने ROC से थोड़ा रिव्यू लेना है कि क्या हम लोग इस जिसका पिटीशन NCLT के पास या ट्रिब्यूनल के पास, किसी भी एनी टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल, एनी टाइप ऑफ लॉ के पास वो अगर गया है, तो आप उसका रिव्यू प्लीज वहां पर पास ऑन कर दीजिए कि क्या हम लोग इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। NCLT भी उसी चीज का वेट कर रही है कि जब तक ROC का कोई रिव्यू सही तरीके से नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे एक्शन नहीं ले सकते। तो कहीं भी अपन लोग ROC को भी अगर NCLT के साथ, मतलब किसी भी ट्रिब्यूनल के साथ अगर अपन लोग ROC को भी एक कॉपी प्रोवाइड करते हैं, तो उसका एक ही रीजन होगा कि हम लोगों को उस के साथ साथ ROC का व्यू भी लेना इम्पोर्टेंट है। तो ये रीजन होगा जिस रीजन के बेसिस पे हम लोग उसको ROC को हमेशा कॉपी सप्लाई करेंगे। सो फर्दर ऑर्डर्स हमारे पास 4+1 थे। 4+1 में सबसे पहला कौन सा होगा? या तो डिसमिस किया जा सकता है,
नेक्स्ट वन इज या तो हम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आपको इंटरिम ऑर्डर दिया जाएगा, या तो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, और अदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर एक डिफरेंस बता दूं कि वाइंडिंग अप ऑर्डर दे देंगे तो हम लोग के पास यहाँ पर जो होगा वो होगा कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। अगर आपको दो लिक्विडेटर की बात कर रहे हैं, या तो प्रोविजनल लिक्विडेटर होंगे। प्रोविजनल लिक्विडेटर कब? जब आपको वाइंडिंग ऑर्डर देना पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी तुरंत सडनली, हम लोग अभी सडनली आपको वाइंडिंग अप ऑर्डर दे नहीं सकते एनी रीजन। एनसीएलटी अगर लग रहा है कि अगर आपको वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं दे सकती तो आपके लिए एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। बट अगर आपके ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया गया तो नो वन इज रिक्वायर्ड ना, आइदर इट इज प्रोविजनल लिक्विडेटर और कंपनी लिक्विडेटर। बट अगर आपको वाइंडिंग अप ऑर्डर भी नहीं दिया गया, आपको डिसमिस भी नहीं किया गया, तो आपके लिए प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है। लेकिन अगर आपके लिए प्रोविजनल नहीं किया गया है, आपको सीधा बाइंडिंग अप ऑर्डर दे दिया गया, तो एनसीएलटी आपको क्या प्रोवाइड करेगी? आपको एक कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट करने के लिए एक ऑर्डर देगी। ओके, दिस ऑर्डर विल बी गिवन टू द कंपनी। अच्छा, वन मोर ऑर्डर होते हैं, ये ऑर्डर नहीं है, ये जब कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को लगेगा तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर दे सकती है कि आपको एक एडवाइजरी कमेटी भी अपॉइंट करनी है। एडवाइजरी कमेटी आपको अपॉइंट करनी होगी जिसके अंदर 12 मैक्सिमम मेंबर्स होंगे, और एडवाइजरी कमेटी का काम ये होगा कि आप असिस्ट करो कंपनी लिक्विडेटर को। हो सकता है कि कंपनी अगर आपकी बड़ी है या फिर बहुत सारे ट्रांजेक्शन से बहुत सारे इश्यूज अगर हम लोग को लग रहे हैं, तो हम लोग आपको एक एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट करने का सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, और आपको एक एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट करना होगा। और एडवाइजरी कमेटी का काम ये होगा कि आपको एक कमेटी का काम ये होगा कि एक कंपनी लिक्विडेटर को आपको सही तरीके से एडवाइस करना है और उसके सारे वर्क को प्रोवाइड करना है, फुलफिल करना है। ओके, तो ये सारे काम होंगे, तो ये भी एक एडिशनल हमारा ऑर्डर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो अपन लोगों ने एक चार्ट में पढ़े हैं, ये अलग अलग सेक्शन से उठाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अपन को ये सारी चीजें इसी सीक्वेंस में पढ़ने को मिलेंगी, अपन लोग इस चीज को पूरा आगे पीछे तोड़ मरोड़ के पढ़ेंगे। बट बेसिकली द पॉइंट इज सिर्फ इतना सही है, पूरे चैप्टर में हम लोग को सिर्फ इतने से ही पढ़ना है जो इस चार्ट में लिखा हुआ है। हर अलग अलग सेक्शन से उठा करके अपन लोगों ने एक चार्ट बनाया है, और इस चार्ट को जब अपन पढ़ लेते हैं तो हमारे ये चैप्टर का ये पार्ट नंबर 1 वाइंडिंग अप, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ वाइंडिंग अप का पार्ट नंबर 1 विच इज वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। इस चीज को अपन सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। बट बेसिकली पॉइंट इज वो तब ज्यादा इजीली समझ में आएगा जब ये हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। ओके, तो अपन जब अंदर पढ़ रहे होंगे तब आप इस सारे टॉपिक्स को एक ही जगह एक्सपेक्ट मत करना कि ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी। अपन को ये सारी चीजें अलग अलग स्टेप वाइज तोड़ मरोड़ के मिलने वाली है। सो ऑर्डर्स जो मिला हमें, कंपनी को ऑर्डर जो मिले हैं, वो कंपनी अब क्या करेगी? उसको इंटीमेट करेगी। किसे इंटीमेट करेगी? टू द प्रोविजनल लिक्विडेटर। सबसे पहले किसको इंटीमेट करेगी? प्रोविजनल लिक्विडेटर को। अब प्रोविजनल लिक्विडेटर को सीधी सी बात है कब इंटीमेट किया जाएगा? जब बाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं मिला और आपके लिए प्रोविजनल लिक्विडेटर खड़ा करके रखा गया है, ऑर्डर दिया गया है तब। या फिर कंपनी लिक्विडेटर को आप इंटीमेट करोगे, सीधी सी बात है, आप या तो ऑफिशियल प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करोगे और उससे इंटीमेट करोगे, या तो फिर आप कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करोगे एंड उससे इंटीमेट करोगे। दोनों के कंडीशंस अलग अलग है। अगर आपको बाइंडिंग अप का प्रोसीजर दिया गया है तो आप कंपनी लिक्विडेटर, अगर नहीं दिया गया है तो आप ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करोगे और उसे इंटीमेट करोगे। ओके, देन ये होने के बाद हम लोगों को एक और जगह इंटीमेट दिया जा रहा है, दैट इज आरओसी। अब ये मैं उधर तरह से कनेक्ट करूं कि अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आरओसी को हम लोग पेटिशन का, ओके, मैंने उसमें बताया था कि पेटिशन का एक कॉपी अगर देते हैं तो दैट विल बी फॉर द रिव्यू। यहाँ पर हम लोग पेटिशन की कॉपी नहीं दे रहे, यहाँ हम लोग क्या दे रहे हैं? एनसीएलटी का जो भी ऑर्डर आया था उस ऑर्डर की कॉपी हम लोग आगे एनसीएलटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा ऑर्डर मिला है, तो प्लीज हेल्प इन एनी प्रोसेस इफ रिक्वायर्ड। अगर हमको आपसे कोई हेल्प लगेगी तो आप हमें हेल्प करना, और इन्फॉर्मेशन जो लगेंगी आप उसको सही तरीके से प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीजें के लिए हम लोग आरओसी को भी क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इंटीमेट करेंगे कि हम लोगों को ऐसे ऑर्डर्स मिले हैं। अगर प्रोविजनल लिक्विडेटर का आया है तो फिर आगे कुछ ज्यादा खास हमारे पास नहीं है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। बट अगर हम लोगों को कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है और वाइंडिंग अप के लिए बोला गया है, तो हम लोग वाइंडिंग अप में ही, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही वाइंडिंग अप है, तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अब कंपनी लिक्विडेटर को जैसे ही अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, ये चीज अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ तभी आएंगी अगर हम लोगों के पास कंपनी लिक्विडेटर होगा तो ही। ऑफिशियल फाइनेंशियल प्रोविजनल लिक्विडेटर होगा तो फिर ये सारी चीजें अपने पास नहीं होगी। अपन लोगों के पास ये सारी चीजें कब आने वाली हैं? जब अगर हमारे पास कंपनी लिक्विडेटर होगा तो।
आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक, कि कौन कौन से पर्सन हैं 4+1, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहला होगा कंपनी, दूसरा होगा कंपनी आरओसी, तीसरा होगा कंट्रीब्यूटर्स, एंड फोर्थ वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड +1 विल बी एनी अदर एनसीएलटी विल बी इंक्लूडेड। ये चीज अब क्या करेंगे, साथ ही साथ 4 पर्सन को अलग से प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन। कौन से 4 पर्सन होंगे, एक एनसीएलटी तो है ही, कंट्रीब्यूटर्स को भी, क्रिएटर्स को भी, एंड द फोर्थ वन आरओसी को भी। आरओसी को क्यों दिया जाता है, तो क्योंकि आरओसी अपना व्यूज हमें प्रेजेंट करेंगे कि क्या हम लोग इनको ऑर्डर देना सही है, सुटेबल है या नहीं, जो भी व्यू देंगे और कितने दिन के अंदर देंगे, 60 डेज के अंदर में ये सारे व्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये होने के बाद अपन लोगों ने एक और चीज देखी थी, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ बताना, तो ठीक है। एनसीएलटी अब क्या करेगा, ऑर्डर देगा, कितने दिन के अंदर ऑर्डर देगा, 90 डेज के अंदर ऑर्डर देगा। या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। 4+1 ऑर्डर्स होंगे हमारे पास में, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, या तो इंटरिम ऑर्डर देगा या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करके दे देगा। जैसे ही प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करके दे देगा तो उसका हमें इंटीमेट देना पड़ेगा। किसको किसको देना पड़ेगा, तो 2 टाइप के पर्सन देना होगा, या तो प्रोविजनल लिक्विडेटर या तो कंपनी लिक्विडेटर, इन दोनों में से किसी एक को देना पड़ेगा। बट इन आइदर एनी ऑफ द केसेस हमें आरओसी को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमें ऐसे ऐसे ऑर्डर मिले हैं, या तो प्रोविजनल लिक्विडेशन के मिले हैं या तो वाइंडिंग अप के मिले हैं। वाइंडिंग अप के मिले हैं तो हमने कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है, एंड दैट इज द नेम ऑफ द पर्सन, और ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग किसको प्रोवाइड करेंगे, तो आरओसी को प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे ही आरओसी प्रोवाइड, अब आगे हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। अब लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले हमारे पास एक और चीज है जो हम लोगों को पढ़ना है, कि अगर कंपनी के अलावा किसी और ने, टोटल 4+1 मेंबर्स थे, 4+1 में कंपनी के अलावा अगर हमें वाइंडिंग अप के लिए कोई और कंप्लेंट करता है या अपील करता, अप्लाई करता है, तो ऐसे कंडीशन पे अब एनसीएलटी हमें एक डायरेक्शन देगी कि आप हमें 30 डेज के अंदर क्या प्रोवाइड करें, कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगा, आप जो भी चीजें हैं उसके फेवर में आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, आप क्यों वाइंडिंग आपके साथ ना किया जाए, तो बोल सकते हैं कि नो ऑब्जेक्शन के लिए आप, ऑब्जेक्शन के लिए अगर आप कुछ अगर बोल सकते अप्लाई कुछ हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप वो इन्फॉर्मेशन हमें इंटीमेट कर सकते हैं कितने दिन के अंदर, लेकिन ओनली 30 डेज। अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं कर पाते तो आपके लिए एडिशनल 30 डेज भी अलाउड किया जाएगा, आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा, फॉर 30 डेज का एक्सटेंशन दिया जाएगा। ओके, तो ये 30 डेज के एक्सटेंशन के बाद भी अगर आप लोगों ने टाइम पे हमें ऑब्जेक्शन नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, और ऑडिट के सारे खर्चे आप ही को उठाने पड़ेंगे। तो यही चीजें यहाँ लिखी हुई है कि डायरेक्ट कंपनी टू फाइल इट्स ऑब्जेक्शन विद इन 30+30 डेज। 30+30 डेज मीन्स पहले 30 डेज तो आपको मिलेंगे, प्लस एडिशन आपको 30 डेज मिल सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, अगर आप सही रीजन बताते हो कि आपको क्यों टाइम पे आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड किया। और उसमें भी अगर नहीं कर पाते तो आपको अपने अकाउंट को ऑडिट कराना पड़ेगा, और ऑडिट कराने के बाद वो हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, और ये ऑडिटिंग की जो भी कॉस्टिंग होगी वो आपको खुद बियर करनी होगी। सो फर्दर दैट अपन लोगों ने एक और चीज देखा था कि एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। एडवाइजरी कमेटी का ऑर्डर दे दिया जा सकता है बाय एनसीएलटी इफ दे थिंक्स फिट, और एडवाइजरी कमेटी का काम ये होगा कि कंपनी लिक्विडेटर को असिस्ट करना, और उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, तो मैक्सिमम 12 मेंबर्स होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब एनसीएलटी को हम लोग को, और कंपनी लिक्विडेटर एनसीएलटी क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अपन लोग देखे थे कि कंपनी लिक्विडेटर जैसे अपॉइंट हुआ, कंपनी लिक्विडेटर को बहुत सारे काम हैं जो करने के हैं, और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने हैं, किसको, एनसीएलटी को। ठीक, अब एनसीएलटी के पास कंपनी लिक्विडेटर क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो अपन लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहला, कंपनी लिक्विडेटर शैल मेक an information or submit the following to the NCLT. अब ओके, तो पहला एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप कमिटी। अब हम लोगों को जैसे ही अपॉइंट किया जाएगा, अब मान लो कि अपन एक कॉर्पोरेट कंपनी लिक्विडेटर है। अब कंपनी लिक्विडेटर जैसे ही अपॉइंट हुए, अपन लोग जैसे ही कंपनी लिक्विडेटर के लिए अपॉइंट हुए, हम लोगों को सबसे पहला काम ये करना होगा कि 3 हफ्ते के अंदर विद इन 3 वीक्स हम लोगों को वाइंडिंग अप कमिटी के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी टू द एनसीएलटी। ये सारी चीजें हम लोग किसको सबमिट कर रहे हैं, एनसीएलटी को ही सबमिट कर रहे हैं। फिर अगेन बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें अलग अलग सेक्शन से उठा के रखी गई है। ये इन शॉर्ट हम लोग एक कंपनी लिक्विडेटर को क्या क्या एनसीएलटी को सबमिट करना पड़ेगा, कब कब कितने कितने समय में सबमिट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर में लिखी हुई है।
तो ये रिवीजन के लिए के हेल्पफुल के तरीके से ही बनाया गया है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द वाइंडिंग अप कमिटी अंडर सेक्शन 277 सब सेक्शन 4, ये कितने दिन के अंदर होगा? तो 3 वीक्स के अंदर होगा। ये इसको आप ऐड कर लेना, मैं शायद भूल गया उस पर लिखना। तो एप्लीकेशन हम लोग को वाइंडिंग अप की कमिटी के लिए, हम लोग एक कंपनी लिक्विडेटर है, तो हम लोग को 3 हफ्ते के अंदर विद इन 3 वीक्स हम लोगों को एनसीएलटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हम एप्लीकेशन पे करना पड़ेगा कि हम लोगों को वाइंडिंग अप कमिटी चाहिए। ओके, सेकंड चीज आप लोग देखते हैं ये वाला कि विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सबमिटेड अ ब्यूरो रिपोर्ट अंडर सेक्शन 281। अब 281 के हिसाब से हम लोग को 60 डेज के अंदर, जैसे ही हमें अपॉइंट किया गया, अब हमारे पास पहला काम ये हो गया कि हम लोग को 60 डेज के अंदर ब्यूरो रिपोर्ट देना है, पूरी कंपनी का हिसाब लगाना होगा कि क्या कंपनी किस पोजीशन में है, कैसे एसेट्स हैं, क्या है क्या है क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ब्यूरो। हम लोग को पूरा ब्यूरो लेना पड़ेगा उस कंपनी का, एंड वो ब्यूरो रिपोर्ट जो होगा वंस इन अ लाइफ टाइम हमें उस कंपनी को एनसीएलटी को प्रोवाइड करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। हमें जैसे ही अपॉइंट किया गया, कंपनी का वाइंडिंग अप तो एक ही बार होगा, वाइंडिंग अप जो एक ही बार होगा, हमें अपॉइंटमेंट भी एक ही बार किया जाएगा, तो हम लोग को ब्यूरो लेना पड़ेगा, वो भी एक ही बार देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अपॉइंट होने के बाद 60 डेज तो पहली बार ही आएंगे। तो 60 डेज के बाद जो हम लोग ब्यूरो रिपोर्ट देते हैं वो लाइफ टाइम में एक ही बार देते हैं, उससे ब्यूरो रिपोर्ट बोलेंगे, और वो रिपोर्ट हमें कंसल्टेंट को प्रोवाइड करना है 60 डेज के अंदर। 60 डेज के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद, हम लोग के पास 3 हफ्ते थे, 3 हफ्ते के अंदर हम लोग को वाइंडिंग अप कमेटी बनानी थी। तो ये अपन लोगों ने 2 चीजों को देख लिया। अब हम लोगों को वाइंडिंग अप कमेटी का एप्लीकेशन भी मिल गया। अब वाइंडिंग अप कमेटी का एप्लीकेशन पे करने के बाद सपोज हम लोगों की वाइंडिंग अप कमेटी बन गई। अब वाइंडिंग अप कमेटी बन गई तो उसकी मीटिंग होगी, उसकी मीटिंग का होगा तो कोई ना कोई रिपोर्ट तो निकलेगा, कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा, उनका कोई ना कोई मिनट्स तो होंगे, वो मिनट्स हो गए, वो रिपोर्ट हो गए, वो सारा इन्फॉर्मेशन हो गया, वो सारे डेटाज हो गए, वो डेटा भी हमें एनसीएलटी को प्रोवाइड करना होगा। और ये मंथली मंथली जैसे जैसे मीटिंग होती रहेंगी, मंथली वाइज हम लोगों को उन्हें प्रोवाइड करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज monthly report of winding up committee meeting and minutes thereof under section 271 subsection 6। तो 277 subsection 6 के हिसाब से हम लोगों को जो हमारी कमेटी का मीटिंग होगी, वाइंडिंग अप कमेटी की मीटिंग होगी, उस कमेटी के मीटिंग में जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो एनसीएलटी को हमें मंथली देने होंगे। अब एनसीएलटी को भी पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है, वाइंडिंग अप कमेटी क्या क्या कर रही है, काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन हमें उनको देना होगा। तो ये ब्यूरो रिपोर्ट क्या था? ब्यूरो रिपोर्ट मतलब वाइंडिंग अप के पहले, प्रोसीजर स्टार्ट होने के पहले इस कंपनी का क्या एग्जिस्टेंस है, क्या पोजीशन है, वो हमें बताना था। ये होने के बाद हम लोग को एक और रिपोर्ट देना होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट देना होता है कि हम लोग का प्रोग्राम, वाइंडिंग अप का प्रोग्राम कैसे कैसे चल रहा है, वो सारा प्रोग्राम भी हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा किसको? एनसीएलटी को अंडर सेक्शन 288। तो क्वार्टरली रिपोर्ट भी देना होगा। तो हमारे पास कौन से रिपोर्ट आ गए? एक वंस इन अ लाइफ टाइम ब्यूरो रिपोर्ट देना है, एक हम लोग का मंथली रिपोर्ट देना होगा, जो हमारी वाइंडिंग अप कमेटी की मीटिंग का रिपोर्ट होगा वो हमें प्रोवाइड करना होगा। थर्ड वन इज क्वार्टरली रिपोर्ट देना होगा पूरे प्रोग्राम का, जो वाइंडिंग अप का जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है वो कैसे कैसे चल रहा है और क्या क्या चल रहा है। ऊपर वाला था कमेटी के मीटिंग का रिपोर्ट देना है, और ये पूरे प्रोग्राम का रिपोर्ट देना है हमें क्वार्टरली। हर क्वार्टर के एंड में हमें ये इन्फॉर्मेशन देना होगा। द नेक्स्ट रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट होगा हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट का, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर रिपोर्ट देना होगा। कैश ट्रांजैक्शन हमारे जितने भी होंगे, हर कैश ट्रांजैक्शन का एक हमें रिपोर्ट देना होगा ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार। तो ऐसे हमारे पास कितने रिपोर्ट्स हो गए? तो एक रिपोर्ट हो गया 60 डेज में, एक लाइफ टाइम में एक बार ही। दूसरा रिपोर्ट हो गया हमारा वाइंडिंग अप कमिटी के मीटिंग का, और ये होगा मंथली, मंथली बोल सकते हैं, अगर 12 महीने चल रहा है तो 12 महीने हम लोग को देना होगा। एक हो गया हमारा क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब वाइंडिंग अप प्रोग्राम के ऊपर हम लोगों का पूरा हम लोग एक देना पड़ेगा, वो क्वार्टरली होगा। और एक होगा जो कैश बेसिस पे होगा, और कैश बेसिस का ट्रांजेक्शन का इन्फॉर्मेशन हमें देना होगा साल में 2 बार, ठीक है, ट्वाइस इन अ ईयर। तो हम लोग का एनसीएलटी का इन्फॉर्मेशन देना होगा। अब ये होने के बाद एक और रिपोर्ट होगा जिसको बोलेंगे अपन ड्राफ्ट करेंगे अपने फाइनल रिपोर्ट, मतलब ये भी एक लाइफ टाइम में पहली बार ही होगा। जब बाइंडिंग अप का प्रोसेस खत्म होगा तब एनसीएलटी को कंपनी लिक्विडेटर फिर एक ड्राफ्ट लेटर बना करके देगा कि ये सारे हमारे काम है, ये हमारा एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बना है, और इसके एंड पे जो हमारा रिपोर्ट बना, पहले हम लोगों ने इसको बाइंडिंग अप कमेटी से अप्रूवल लिया, और उस अप्रूवल होने के बाद हम लोगों ने इसको आपको सबमिट किया है। तो ये सारा वर्क होगा किसका? कंपनी लिक्विडेटर का, ठीक है। एंड फाइनली application of dissolution to the NCLT since company have been completely wound up। अब हम लोगों ने फाइनल ड्राफ्ट बनाया, दैट इज हम लोगों ने ड्राफ्ट बना दिया, तो हम लोगों का पूरा काम खत्म हो चुका है। अब हमारा काम खत्म हो चुका है तो हम लोग अब क्या करेंगे? तो एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एनसीएलटी को देंगे कि हम लोगों ने ये सारा काम खत्म कर दिया और वाइंडिंग अप हो चुका है, कंपनी को प्लीज आप डिसॉल्यूशन का ऑर्डर दे दीजिए।
इन सारे प्रोसेस जब भी हो रहे होंगे, इनके बीच में कंपनी को या कंपनी लिक्विडेटर को एक डायरेक्शन मिल सकता है, वो होगा कि आपको इस कंपनी को लिक्विडेट करना, सॉरी डिसोल्यूशन करना है, डिसॉल्व करना है विद इन अ पीरियड दैट, जो भी कंपनी एनसीएलटी आपको जो भी एक टाइम लिमिट देगी उसके अंदर ये काम करना होगा। तो पहला काम ये होगा टू फिक्स टाइम लिमिट टू गेट दिस सॉल्व। आप एक टाइम लिमिट सेट हो गया, या तो हम करें या तो आप खुद टाइम सेट करके बताओ कि कितने समय के अंदर ये होगा। नेक्स्ट वन इज अपॉइंट सेल कमेटी। आपको एक सेल कमेटी अपॉइंट करके दी जाएगी, या बोला जाएगा कि अपॉइंट सेल कमेटी को अपॉइंट करो। एंड द लास्ट वन इज, या तो आप कंपनी को एज ए गोइंग कंसर्न सेल कर सकते हो। तो आपको ये तीन डायरेक्शंस देखने को मिलेंगे। एंड द लास्ट वन इज एनसीएलटी ने ये सारे चीजें मिलने के बाद, ड्राफ्ट मिलने के बाद एंड फाइनल एप्लीकेशन मिलने के बाद, ऑफ द डिसॉल्यूशन मिलने के बाद, अब डिसॉल्यूशन का ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही आपको डिसॉल्यूशन का ऑर्डर मिलेगा, वो कंपनी लिक्विडेटर के थ्रू आरओसी को 30 डेज के अंदर बता दिया जाएगा कि दैट द कंपनी इज इन द वाइंडिंग अप प्रोसेस। ये सारे ऑर्डर हम लोगों को उधर डिसॉल्यूशन प्रोसेस और आपको डिसॉल्व करने के लिए एक ऑर्डर दिया जाएगा, और वो ऑर्डर का जो कॉपी होगी वो आपको किसको दिया जाएगा, आरओसी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा चार्ट बोल सकते हैं, जिस चार्ट के बेसिस पे अपन लोग अपने इस चैप्टर को समझेंगे। ओके, ऑफिशियल लिक्विडेटर पार्ट नंबर 4, इसको अपन बाद में देखेंगे। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर ये लास्ट प्रोसेस है, ठीक है। अपन लोग के आज दो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 1 हमारा हो चुका है, मतलब चार्ट वाइज तो हो चुका है, अपन लोग उसको डीपली समझते हैं। वाइंडिंग अप एक्चुअली चैप्टर नंबर 20 से बिलोंग करता है, और इस चैप्टर में हमारे पास कितने सेक्शंस हैं, नियर अबाउट 96 सेक्शंस हैं। तो वो सेक्शंस कहाँ शुरू होते हैं, सेक्शन नंबर 270 से 365 तक के होंगे, ठीक। हमारा पार्ट नंबर 1 स्टार्ट होगा 271 से। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना पहला पार्ट, पार्ट नंबर 1, दैट इज वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा आपको कि ये रीजन है कि आप अब वाइंडिंग अप के प्रोसेस पे हैं, आप नहीं चाहते हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपकी कंपनी क्या हो, लिक्विडेट हो। सेक्शन 270 हमें बताता है कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, कौन से मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप है। पहला मोड होगा हमारा बाय एनसीएलटी, जो अपन लोग अभी तक के देख रहे थे, क्योंकि हमने सारे इन्फॉर्मेशन, सारे एप्लीकेशन से लेकर के सारी चीजें, ऑर्डर भी किसने दिया, हमने एप्लीकेशन किसको दिया, सारा काम किसके साथ हुआ है, हमारा एनसीएलटी के साथ हुआ है। तो ये हम लोग पार्ट 1 में थे, और ये पार्ट 1 हमारा इसी पे डील करता है, तो बाय एनसीएलटी। और मोड नंबर 2 बोलता है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जो कि अभी भी आज की डेट में हमारे एग्जिस्ट में नहीं है, हम लोग आज की डेट में इसको रीड नहीं करने वाले, क्योंकि ये चीज हम लोग आईबीसी के अंदर पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 अगेन। सेक्शन नंबर 270 तो हो चुका है, 270 तो हो चुका है, तो हम लोग का 271 से स्टार्ट होगा टू द 303 तक। ये 271 से लेकर के 303 हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले हैं अबाउट वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल एंड हियर ट्रिब्यूनल मींस एनसीएलटी। ये याद रखना, एनसीएलटी ही यहाँ पर ट्रिब्यूनल होगी। ओके, तो अपन लोग बात कर रहे थे कि 4+1 सबसे पहला सेक्शन है 271, दैट इज सर्कमस्टेंसेस। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जिस सर्कमस्टेंसेस में हम लोग को लिक्विडेशन का वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, ये भी 4+1 है। 4+1 मतलब 4 हमारे पास ऑर्डर्स होंगे, और 1 मींस एडिशनल। एनसीएलटी कभी भी एक नया ऑर्डर प्रोवाइड, मतलब एक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो पहला, चलो देखो सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा खास नहीं है यहाँ पर में। तो पहला पॉइंट होगा कि अगर कंपनी ने एसआर पास किया होगा, और लगता है कि एसआर कंपनी के मेंबर्स ने एसआर पास किया होगा, और कंपनी के मेंबर्स ने एसआर पास करके बोला कि हम लोगों को लिक्विडेट होना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिब्यूनल। सेकंड है कि अगर कंपनी किसी इंडियन कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर काम कर रही है, तो उस पर्पज में, उस सिचुएशन में आपके कंपनी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप कंपनी इस कंट्री के लिए कैपेबल नहीं हो, और आप गलत काम कर रहे हो, तो आपको लिक्विडेट होना पड़ेगा, वाइंडिंग अप होना पड़ेगा। और नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आपने कंसिस्टेंटली 5 साल तक आपने या तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या और एनुअल रिपोर्ट, अगर आपने 5 साल तक कंसिस्टेंटली, दोनों में से कोई भी एक 5 साल तक कंसिस्टेंटली, मतलब 1 साल हमने एनुअल रिपोर्ट में दिया, 1 साल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ही प्रोवाइड किया, ठीक है। मतलब पहली बार हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट में फाइल किया, और दूसरे साल हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सप्लाई किया, फिर तीसरे बार एनुअल रिपोर्ट, फिर चौथे बार फाइनेंशियल, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंसिस्टेंटली लगातार 5 साल अगर हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है, तो हम लोगों को वाइंडिंग अप का ऑर्डर बाय द एनसीएलटी मिल सकता है।
एंड द लास्ट वन इज आरओसी या फिर कोई भी अदर पर्सन हम लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं फॉर द अप्लाई कर सकते हैं टू द एनसीएलटी फॉर द वाइंडिंग अप। तो ये 4 पर्सन थे और 5वां कोई अदर एनी अदर ग्राउंड इफ द सेंट्रल इफ द ट्रिब्यूनल थिंक्स फिट। ट्रिब्यूनल मींस एनसीएलटी थिंक्स फिट। अब ये होने के बाद अपन लोगों को क्या पढ़ना है, बरीड कर लेते हैं इसको। SR बाय कंपनी बाय SR रिजॉल्व दैट द कंपनी बी वोन्ड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक, ये सेकंड पॉइंट, ये जो सेकंड पॉइंट था ये एक्चुअली ये अब ओमिट हो चुका है। ये पहले पॉइंट था एक्चुअली, ये था पहले कि क्रेडिटर्स भी क्या कर सकते हैं, आपके लिए वाइंडिंग अप के प्रोसेस का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं किसको, एनसीएलटी को। बट अब ये चीज ओमिट हो चुकी है और इसके ओमिट होने से हम लोग का सेक्शन नंबर 272 में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। वो क्या इफेक्ट पड़ा है अपन 272 में देखेंगे। बट अभी पॉइंट इज, सबसे पहला पॉइंट अभी ये ओमिट हो चुका। अब 4 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट क्या है हम लोग देखते हैं। एसआर के पास कंपनी के कंट्रीब्यूटर्स अप्लाई कर सकते हैं, एसआर से कंट्रीब्यूटर्स अप्लाई कर सकते हैं कि हम लोग को वाइंडिंग अप चाहिए इस कंपनी का। कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, अगर कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया गया होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्लाई करेगी, बोलेगी, फोर्स करेगी। नेक्स्ट, इफ कंपनी फेल्स इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने अभी बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट जो रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जो है, ये अगर हम लोगों ने 5 साल तक कंसेक्यूटिव 5 इयर्स तक हम अगर आरओसी को सबमिट नहीं किया होगा तो हम लोगों को एक लिक्विडेट होना, सॉरी वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिल सकता है। आरओसी या एनी अदर पर्सन अगर अप्लाई करते हैं ट्रिब्यूनल को और ऑन एनी अदर ग्राउंड इफ द ट्रिब्यूनल दैट इज एनसीएलटी थिंक फिट। ये 4+1 के सर्कमस्टेंसेस थे। सेक्शन नंबर 272 ये बताएगा कि कौन से पार्टीज हैं जो इनिशिएट कर सकते हैं, जो अपन लोग उस समय देखें। ये भी 4+1 ही थे। 4+1 अगेन हियर इज दैट, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन होगा। अपन उस चार्ट में देखे थे, सबसे पहले टॉप में कंपनी थी, तो हम लोग कंपनी भी कर सकती है, जो अपन लोग अभी देखे इस पॉइंट नंबर 1 के बेसिस पे कि कंपनी खुद भी क्या कर सकती है, तो एसआर के साथ वाइंडिंग अप का अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर भी उसी कैटेगरी में आएगा, एसआर पास करने के लिए हेल्पफुल। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करते हो तो, और आरओसी। ठीक है, आरओसी अपन लास्ट पॉइंट में पढ़े थे कि सेकंड लास्ट पॉइंट में पढ़े थे कि आरओसी और एनी अदर पर्सन में अप्लाई, तो यहाँ पर आरओसी भी अप्लाई कर सकती है एंड एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर मैं नोटिस करने लायक एक पॉइंट है कि वहां पर जो +1 पॉइंट था, वो +1 पॉइंट ये था कि एनी अदर ग्राउंड इफ ट्रिब्यूनल थिंक फिट। यहाँ पर जो पॉइंट था, जो पढ़ रहे थे अपन कि ट्रिब्यूनल फिट, ट्रिब्यूनल को जो सही लगेगा वो हम लोग एड सर्कमस्टेंसेस कर सकते हैं। बट अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो पर्सन को ऐड कब करेंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगेगा तब। तो ये छोटा सा एक हिंट है अपने लिए कि ये इस हिंट के बेसिस पे अपने को अपने आंसर्स को सही तरीके से आंसर करना है, क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करना है। ओके ठीक, नेक्स्ट। अब पेटिशन के साथ हम लोगों को, मतलब कंपनी अगर अपने पेटिशन के साथ, मतलब जो भी पर्सन है, अगर डायरेक्टर, अगर अपन पहले कंपनी की बात करें, कंपनी अगर अपना पेटिशन दे रही है, अगर कंपनी अपनी तरफ से पेटिशन दे रही होगी तो कंपनी को अपने तरफ से इंफॉर्मेशन सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि 15 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना हो सकता है लेकिन वो 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अपन ये भी देखे थे कि पेटिशनर पेटिशन फाइल करते समय क्रेडिटर्स को भी सारा पेटिशन देगा, ठीक है, कंट्रीब्यूटर्स को भी देगा, ये भी पढ़े थे, और एक आरओसी को भी देगा। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी उधर देखा है। तो यही अपन वापस रिपीट कर रहे हैं क्या, कि हम लोगों को जो पेटिशन सबमिट करना है तो साथ साथ किसको भी देना है, तो हम लोगों को 3 पर्सन को और देना पड़ेगा। एनसीएलटी के साथ 3 पर्सन को और देना पड़ेगा। कौन से 3 पर्सन होंगे, कंट्रीब्यूटर, क्रेडिटर और आरओसी। अब हमने आरओसी को क्यों दिया, क्योंकि आरओसी shall submit his views to the tribunal within 60 days by the days of petition। जैसे पेटिशन मिला आपको 60 डेज के अंदर क्या करना होगा, तो आपको एक रिव्यू देना होगा कि क्या इस सारी चीजों पे रिव्यू देना है, इन शॉर्ट। सो नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 273 में पावर्स बताते हैं कि ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर्स है। तो या अगेन 4+1 हम लोगों के पास फिर 4+1 पावर्स है, अगेन 4 इन +1 विल बी द अदर्स। तो पहला डिसमिस करने का, इंटरिम ऑर्डर देने का, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर का, या फिर वाइंडिंग अप का, ये 4
एंड +1 इज एनी अदर ऑर्डर्स हम लोगों को मिल सकते हैं। तो ये 5 ऑर्डर्स हैं अपने पास जो हम लोगों को मिल सकते हैं बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मींस NCLT। सेक्शन नंबर 274, सेक्शन नंबर 274 बोलता है कि डायरेक्शन फॉर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अपन लोग ये भी देखे थे कि आपको एक अफेयर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट करने का एक ऑर्डर दिया जाएगा। देखो, कंपनी ने खुद अप्लाई किया तो वो खुद पिटीशन के साथ अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मैक्सिमम 15 दिन पुराना वो इन्फॉर्मेशन के साथ एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेगी। बट व्हाट इफ अगर कंपनी ने नहीं अप्लाई किया, किसी और ने अप्लाई किया, तो कंपनी ने तो पिटीशन सबमिट ही नहीं किया, तो कंपनी को पिटीशन सबमिट करने के लिए ऑर्डर कौन देगा? तो NCLT। NCLT क्या करेगी? आप कंपनी को एक ऑर्डर देगी कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सबमिट करना है विद इन 30 डेज। अगर आपने 30 डेज के अंदर सबमिट नहीं किया तो आपको एडिशनल 30 डेज मिल सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। अगर आपने उस 30 डेज में भी नहीं दिया तो फिर आपको अपने इनकम को और सारे अपने स्टेटमेंट को पहले ऑडिट कराना पड़ेगा एंड देन सबमिट करना पड़ेगा, और उसके लिए लास्टली स्ट्रिक्टली 30 डेज अवेलेबल होंगे, और जो इसके सारे खर्चे आपको खुद को बियर करने होंगे, और यही चीजें यहाँ पर में लिखी हुई है। ठीक, इफ नॉट प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज ट्रिब्यूनल में एक्सटेंड एडिशनल 30 डेज, देन ऑल्सो डिड नॉट इफ नॉट प्रोवाइडेड डिड नॉट काट देना, if not provided tribunal may order for winding up, and after order of winding up directors have to submit books of account completed audited at the cost of the company to the NCLT within the next 30 days। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 275। अपन इसको थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आई थिंक आपको ये थोड़ा सा जल्दी समझ में आ रहा होगा उस चार्ट को देखने के बाद। तो नेक्स्ट सेक्शन इज 275, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। देखो, अपन लोग देखे थे कि या तो कंपनी आपको प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट करने बोलेगी या तो कंपनी लिक्विडेटर। वी आर कंटिन्यूइंग विद द कंपनी लिक्विडेटर एंड नॉट बाय द प्रोविजनल लिक्विडेटर। अपन लोगों को पहली बात की थी क्योंकि कंपनी ऑफिशियल प्रोविजनल लिक्विडेटर का खास यहाँ पर में कोई रोल नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कंपनी लिक्विडेटर के बारे में पढ़ना है क्योंकि हम वी आर कंटिन्यूइंग इज विद द स्टेज ऑफ विद द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। सो सबसे पहले the first point is section number 275 subsection 1, tribunal shall appoint official liquidator और company liquidator। tribunal आपको company liquidator अपॉइंट करने बोलेगी या तो फिर official liquidator को अपॉइंट करने बोलेगी। Second subsection 2 is amended after the coming of या फिर after the commencement of insolvency and bankruptcy court। हमारा company लिक्विडेटर कौन होगा? लिक्विडेटर कौन होगा? लिक्विडेटर वही होगा जो हमारा अपन लास्ट चैप्टर में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में बात किए थे। सेक्शन 275 सबसेक्शन 2 हमें यही बोलता है कि आपके कंपनी में जो लिक्विडेटर पॉइंट होगा वो वही होगा जो IBC का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा। तो इंसॉल्वेंसी के प्रोफेशनल को जो काम दिया जाता है वही काम आपको लिक्विडेटर को भी बना करके दिए गए हैं, तो वही ऑफिशियल IP यहाँ पर में लिक्विडेटर बन के प्रेजेंट होंगे। सेक्शन नंबर 275 सबसेक्शन 3 ये बोलता है इफ प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंटेड, अगर आपको प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया तो किसने किया? NCLT ने किया, तो उसके पावर्स भी कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा? NCLT करेगा। Next 275 subsection 4 is omitted now। Section number 275 subsection 5 says that fees payable to the liquidator shall be decided by the tribunal। किसने ऑर्डर दिया आपको अपॉइंट करने का? तो ट्रिब्यूनल ने। तो फीस भी कौन डिसाइड करेगा? ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। कब, कैसे, क्या और क्या कंडीशंस होंगी? टर्म्स एंड कंडीशंस विल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द NCLT। नेक्स्ट सेक्शन इज 275 सबसेक्शन 6 अब विद इन 7 डेज। अब NCLT के बाद यहाँ पर में लिक्विडेटर का काम है कि आपके पास 7 डेज हैं, अब अपना इंडिपेंडेंसी विद द कंपनी प्रूव करिए कि आप इंडिपेंडेंट हैं इस कंपनी के लिए, आप डिपेंडेंट नहीं है इस कंपनी के ऊपर, तो आप सही तरीके से इस चीज को वर्कआउट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको आपकी इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? लिक्विडेट होने से पहले, प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले, लिक्विडेटर बनने के पहले आपको 7 डेज में अपनी इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस कंपनी में, आप यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो इन शॉर्ट 275 सबसेक्शन में क्या बोला गया? NCLT लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, उसका टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेगा, उसका फीस डिसाइड करेगा, और उसके बाद आप एक लिक्विडेटर हो और आपको 7 दिन के अंदर कंपनी से जो भी इंडिपेंडेंसी है, आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको ये बताना पड़ेगा, और आप इंडिपेंडेंट हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस कंपनी पे कोई किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं। प्लस मोर ओवर यहाँ पर आपने एक और चीज देखी कि हमारे यहाँ पर जो भी लिक्विडेटर बनेंगे वो कौन होंगे? तो IBC के IP जो प्रोवाइड होते हैं वही सारे यहाँ पर भी होंगे।
तो आईपी कौन थे? तो आईपी जो आईबीबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं वो पढ़े थे अपन लोग, और प्लस मोर ओवर दे आर रिक्वायर्ड टू गेट मेंबरशिप नंबर अंडर द आईपीए, इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल एजेंसीज। ओके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग 276। सेक्शन 276 इज दैट रिमूवल ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। किसने बनाया है कंपनी लिक्विडेटर को? तो ट्रिब्यूनल ने। तो कौन निकाल सकता है कंपनी लिक्विडेटर को? तो ट्रिब्यूनल निकाल सकता है। तो क्या ट्रिब्यूनल निकाल सकता है एक बार ऑफिशियल लिक्विडेटर को या कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट होने के बाद? तो यस, ऑब्वियसली यस, कंपनी लिक्विडेटर को ट्रिब्यूनल निकाल सकता है। अब उसके एक बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब बहुत सारे रीजंस क्या क्या? मिसकंडक्ट किया होगा, फ्रॉड किया होगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया होगा, इनकॉम्पिटेंसी होगी उसकी, या इनेबल होगा, मतलब जो भी एक्ट उस पर एप्लीकेबल हुए वो उसको लिक्विडेट सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, ऐसे कंडीशन पे उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी जिसमें आपको रिमूव किया जाएगा। सेक्शन नंबर 277 ये था इंटीमेशन टू द कंपनी लिक्विडेटर एंड प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड आरओसी, मतलब सॉरी, कंपनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड आरओसी। अपन लोगों ने देखा था कि हमें इंटीमेट करना पड़ता है। किसको किसको इंटीमेट करना पड़ता है? देखे थे, या तो प्रोविजनल लिक्विडेटर या तो कंपनी लिक्विडेटर एंड आरओसी। आरओसी को तो हर केस में करना पड़ेगा। इन दो में से अपन को सिलेक्ट करना है, या तो प्रोविजनल को या तो कंपनी को लिक्विडेटर को। तो आपको तो ये पता है कि किसको पता चल चुका होगा कि प्रोविजनल लिक्विडेटर को कब करेंगे एंड कंपनी लिक्विडेटर को कब करेंगे। एनसीएलटी ने अगर प्रोविजनल लिक्विडेशन का गाइडेंस दिया होगा तो आपको प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करके उसे इंटीमेशन देना होगा। इन अदर केस कंपनी लिक्विडेटर को देना होगा। ओके, इंटीमेशन ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, ये जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, कंपनी शैल इंटीमेट प्रोविजनल लिक्विडेटर और अदर लिक्विडेटर विद इन 7 days ऑफ ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल फॉर द लिक्विडेशन। जैसे ही आपको लिक्विडेशन का ऑर्डर मिला 7 दिन के अंदर आपको इंटीमेट करना होगा कि हमने आपको अपॉइंट करना है, या जो भी प्रोसेस आपको जो भी बोला गया है वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको उन टाइप ऑफ लिक्विडेटर को इंटीमेट करना है। नेक्स्ट वन इज वन। अब ये फटाफट पढ़ते हैं हम लोग, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 277 सबसेक्शन 3 बोलता है कि बाइंडिंग अप ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर एम्प्लॉइज वर्कमैन ऑफ द कंपनी। मतलब जैसे ही आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिलेगा वैसे ही अपने ऑफिसर्स, वर्कमैन और एम्प्लॉइज को डिस्चार्ज मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी डिस्चार्ज। ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस व्हेन बिजनेस ऑफ कंपनी इज कंटिन्यूस। ये पॉसिबिलिटी इसकी कम होगी कि कंपनी अगर कंटिन्यू है तो फिर आपको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको सीधा वाइंडिंग अप का प्रोसेस दिया जा रहा है, मतलब प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है और कंटिन्यू हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। बट अगर आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिल चुका है, आपको कंपनी वाइंडिंग अप मिल रही है और कंटिन्यू नहीं होने वाली है, तो ऐसे कंडीशन पे आप डिस्चार्ज माने जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। 277 सबसेक्शन 4 बोलता है कि विद इन 3 वीक्स, ये अपन देखे थे कि 3 हफ्ते के अंदर फाइंडिंग अप कमिटी का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा कि हमें फाइंडिंग अप कमिटी चाहिए टू द ट्रिब्यूनल। 277 सबसेक्शन 6 बोलता है कंपनी लिक्विडेटर शैल प्लेस बिफोर ट्रिब्यूनल अ रिपोर्ट अलोंग विद द मिनट ऑफ द मीटिंग ऑन द मंथली बेसिस। ये पढ़ चुके थे कि मंथली बेसिस पे हमें उस मीटिंग का, फाइंडिंग अप कमिटी की मीटिंग का मिनट्स और उसके इन्फॉर्मेशन सबमिट करने पड़ेंगे मंथली बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट अपन देखे थे कंपनी लिक्विडेटर देन प्रिपेयर द ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट फॉर अप्रूवल ऑफ द वाइंडिंग अप कमिटी। वाइंडिंग अप कमिटी का जो भी अप्रूवल होगा ऑन द फाइनल ड्राफ्ट मेड बाय द कंपनी लिक्विडेटर। ये एकदम अभी की बात नहीं है, ये पूरा काम कंप्लीट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद कंपनी लिक्विडेटर एक ड्राफ्ट बनाएगा जिसको अपन फाइनल ड्राफ्ट बोलेंगे, और फाइनल मींस लास्ट ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट सबमिट किया जाएगा ऑडिट पहले कमेटी को, वाइंडिंग कमेटी को सही लगता है तो वो ड्राफ्ट हम लोग किसको अप्रूवल होने के बाद, वाइंडिंग कमेटी के अप्रूवल के बाद किसको सबमिट करेंगे, तो हम लोग एनसीएलटी को सबमिट करेंगे। ये भी अपन देख चुके थे। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द ड्राफ्ट बाय द बाइंडिंग अप कमिटी, ड्राफ्ट शैल बी सबमिटेड टू द ट्रिब्यूनल बाय द कंपनी लिक्विडेटर फॉर पासिंग फर्दर ऑर्डर्स। नेक्स्ट 278 इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का इफेक्ट क्या होगा? अब ये सिंपल सी बात है कि जो भी इफेक्ट होगा वाइंडिंग अप जो भी होगा, बट शुड बी इन द फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द कंट्रीब्यूटर्स। कंपनी के फेवर में हो या ना हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोगों का कंपनी क्रेडिटर्स के और कंट्रीब्यूटर्स के फेवर में तो होना चाहिए। सेक्शन 279, बट ऑब्वियसली ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के फेवर में नहीं होगा, कंपनी के फेवर में ही होगा, बट द मोस्ट इट शुड बी फेवरेबल फॉर द क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर। सेक्शन 279 स्टे ऑफ सूट्स एक्सेट्रा ऑफ द वाइंडिंग अप। कोई भी केस पेंडिंग होगी वो अब
कंटिन्यू नहीं होगी, कोई भी नया लीगल प्रोसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नो पेंडिंग केस और सूट शैल बी प्रोसीडेड बाय अगेंस्ट द कंपनी, कोई भी नहीं होगा, कोई भी पेंडिंग केस प्रोसीड नहीं होगा। नो लीगल प्रोसीडिंग शैल कमेंस, अब कोई नया लीगल प्रोसीडिंग कमेंस नहीं होगा, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल एंड सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एज द ट्रिब्यूनल में इम्पोज। अब ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कुछ कुछ सिचुएशन पे कुछ कुछ एक्ट कुछ कुछ चीजें अगर हम पे एप्लीकेबल हो सकती हैं, तो वो चीजों को छोड़ करके कोई भी चीजें हम पे एप्लीकेबल नहीं होगी और कोई भी पुराना केस या नया केस नहीं लग सकता। बस ये जो ट्रिब्यूनल बोल देगा उन सारी चीजों के ऊपर इम्पोज हो सकता है। एनी एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल सीकिंग लीव में डिस्पोज ऑफ विद इन 60 डेज बाय द ट्रिब्यूनल, और जो भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लीव के लिए इम्पोजिशन लीव के लिए अगर चाहते हैं और हम लोगों ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल की है, तो उसका डिस्पोज ऑफ हमें 60 डेज के अंदर मिल जाना चाहिए। बट सेक्शन 279 सबसेक्शन 2, एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग इन द अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल प्रोसीड। मतलब इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी केस प्रोसीडिंग चल रही होंगी वो तो अभी भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि दे आर हायर फ्रॉम ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिए हैं वो उनसे लोअर के कोई भी केसेस होंगे वो नहीं चलेंगे, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी केसेस पेंडिंग होंगे वो सारे अभी भी कंटिन्यू होंगे, उसके बाद ही आगे वाइंडिंग अप प्रोसेस चालू होगा। सेक्शन नंबर 281, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द कंपनी लिक्विडेटर। अपन लोग ये देखे थे कि सबमिट करना पड़ेगा, इनको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट। अपन लोग ये भी देखे थे कि जैसे ही अपॉइंट होगा उसके बाद 60 डेज के अंदर आपको अपॉइंट किया जाएगा, 60 डेज के अंदर जैसे ही आपको अपॉइंट किया जाएगा उसके बाद आपको एक ब्यूरो रिपोर्ट देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट मीन्स कंपनी का जो भी पूरा ब्यौरा करना पड़ेगा आपको, और उसके बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि इस कंपनी का क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या पोजीशन है, वो उसको बोलेंगे अपन ब्यूरो रिपोर्ट। इस सेक्शन की बात अगर करेंगे अपन लोग, सेक्शन नंबर 277 बिलोंग्स टू दैट ओनली रिपोर्ट, दैट इज रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो। बट एडिशनल अपन लोग यहीं पर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है कि हमारे लिए और एडिशनल कौन से रिपोर्ट्स होंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। इन दैट केस इज, मतलब इस सेक्शन से बिलोंग नहीं करते हैं बट ये अलग जगह से बिलोंग करेंगे, बट कौन से रिपोर्ट होंगे हमारे को जो एनसीएलटी को प्रेजेंट करने होंगे, हम लोग उस रिपोर्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि हम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हमारा ज्यादा कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग को और कौन से रिपोर्ट, मतलब अलग बल्क हो जाता है बहुत सारा कि ये भी रिपोर्ट है वो भी रिपोर्ट है वो भी रिपोर्ट है, और आगे जाकर के भूल जाते हैं कि ये कौन सा रिपोर्ट है वो कौन सा रिपोर्ट है। तो इसी को सेव करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा कौन से और एडिशनल रिपोर्ट्स है वो भी लिख दिए। तो 281 तो बोलता है कि आपको ब्यूरो रिपोर्ट देना है 60 दिन के अंदर, लाइफ टाइम में एक ही बार। बट आगे भी क्या बोलता है कि रिपोर्ट क्वार्टरली भी देना होगा एक तो आपको। वो कौन सी रिपोर्ट देनी होगी आपको क्वार्टरली? वो होगा टू चेक प्रोग्रेस। क्वार्टरली रिपोर्ट देखे थे आप लोगों की, प्रोग्रेस चेक होगा, पूरे प्रोग्राम का जो होगा वो पूरे प्रोग्राम का आपको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 288। एक और रिपोर्ट होगा ट्वाइस देना होगा जो कैश ट्रांजेक्शन वाले होंगे। एक और होगा रिपोर्ट मंथली रिपोर्ट देनी होगी, कौन सी? वाइंडिंग अप कमेटी की, जो अपन अभी पढ़ते हुए आए हैं इसके पहले सेक्शन में, दैट इज 277। 277 सेक्शन में जो पढ़े थे अपन लोग वो सारी चीजें अभी यहाँ पर में कवर हुई। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर में कितने रिपोर्ट्स थे वो यहाँ पर में कलेक्ट हो गया। बट फाइनली देखा जाए तो सेक्शन नंबर 281 के हिसाब से हम लोगों को कौन सा लिक्विड रिपोर्ट सबमिट करना था, तो यहाँ पर में हमें एक ही रिपोर्ट सबमिट करना था मेनली अंडर सेक्शन 281 के हिसाब से, तो वो है ब्यूरो रिपोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 282। सेक्शन नंबर 282, डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का डायरेक्शन क्या होगा वो हम लोग को देखना है कि ऑन रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट आया हमारे पास वो रिपोर्ट पे ट्रिब्यूनल का डायरेक्शन क्या होगा। ट्रिब्यूनल फिक्स द टाइम लिमिट। अपन जो बीच में एक पॉइंट पढ़े थे कि 3 टाइप के डायरेक्शंस मिल सकते हैं, कौन से कि आपको फिक्स करना पड़ेगा टाइम लिमिट, दूसरा कि सेल कमेटी अपॉइंट कर लो, और तीसरा आप डायरेक्टली आप उस अपने कंपनी को गोइंग कंसर्न के थ्रू बेच सकते हो। मतलब कंपनी लिक्विडेटर को डायरेक्शन मिलेगा कि इस कंपनी को आपको गोइंग कंसर्न के थ्रू सेल कर सकते हो, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे सेल कर सकते हो। ये होने के बाद ये 22 उसी के ऊपर था। नेक्स्ट इज 283, ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड ओनर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। इसको अलग से ज्यादा कुछ खास फोकस लगाने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली पॉइंट इज दैट कि एनसीएलटी हमारे कंपनी का अब डीम्ड ओनर माना जाएगा। अब जो भी पर्सन थे मींस डायरेक्टर सीम्स टू बी अनअफेक्टेड फॉर दिस। आफ्टर दैट कंपनी ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। आगे
284 बोलता है कि प्रोमोटर्स डायरेक्ट एक्सेट्रा डायरेक्टर एक्सेट्रा टू कोऑपरेट विद द कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी के लिक्विडेटर को आपको असिस्ट करना जरूरी है। किसको किसको? एक तो प्रोमोटर्स को और एक डायरेक्टर्स को। और इन लोगों को अगर आपने असिस्ट नहीं किया, आपने अगर कंपनी लिक्विडेटर को असिस्ट नहीं किया तो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट भी हो सकती है, आपके अगेंस्ट फाइन भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। दैट इज द पार्ट ऑफ द पेनल्टी। और पेनल्टी पे ज़्यादा कुछ खास मैं फोकस नहीं करता क्योंकि वो याद रखना तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से ये होगा कि पेनल्टी पे ज़्यादा फोकस ना किया जाए। पेनल्टी को याद रखने में बहुत झंझट होती है और पूरी पेनल्टी पे अगर फोकस भी करें तो मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स का पूरे एग्जाम में पेनल्टी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो उस 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस के मार्क्स को बचाने के लिए हम लोग इतना बड़ा बर्डन फेस करके चलें तो इट इज़ नॉट गुड इनफ। सो मेरे हिसाब से तो यही होगा कि अपन पेनल्टी को थोड़ा सा इग्नोर करें तो ही बेटर है। नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है यहाँ पर में? सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स की जो लिस्ट थी कि आपका जितने जितना अमाउंट पेंडिंग है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे? सेटलमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ऑब्लिगेशन में सर ये इज लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। और हम लोग को पता है कि कंपनी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कभी लिमिटेड नहीं होती। डायरेक्टर्स की लायबिलिटी बहुत बड़ी होती है, जो हम लोग आगे एक सेक्शन में और समझ में आएगा कि एक्चुअल में डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कितनी बड़ी होती है। बट द पॉइंट इज कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, बट डायरेक्टर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। मोreover, डायरेक्टर अगर कंपनी से पहले ही निकल चुका था, जब एक साल मतलब लिक्विडेशन के वाइंडिंग अप के 1 साल पहले ही निकल चुका था, तो कंपनी के ऊपर मतलब उस पर्सन की डायरेक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं है, तब डायरेक्टर को फेस करना नहीं पड़ेगा। बट अगर डायरेक्टर के निकलने के पहले जिस लायबिलिटी को क्रिएट किया गया था उस लायबिलिटी पे डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, इवन इफ दैट डायरेक्टर इज नॉट नाउ एग्जिस्टेड एज अ डायरेक्टर इन अवर कंपनी। अगर वो आज की डेट में भले ही वो हमारे कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, बट ये उस समय से बिलोंग करता है, ये लायबिलिटी उस समय से बिलोंग करती है जब वो हमारा डायरेक्टर था। So in that case, that director will also be held liable and will be obligated in the winding up process. नेक्स्ट इज एडवाइजरी कमेटी। अपन ये भी देखे थे कि ऑर्डर दिया जा सकता है एनसीएलटी के थ्रू कि आपको एक एडवाइजरी कमेटी बनानी है। एडवाइजरी कमेटी के मैक्सिमम 12 मेंबर्स होंगे और ये 12 मेंबर्स मिलके कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी को बोला जाएगा एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी बनने के बाद ये हमारे कंपनी के लिक्विडेटर को क्या करेगी? असिस्ट करेगी। और इस कमेटी की मीटिंग जब भी होगी, उस कमेटी की मीटिंग को कौन चेयर करेगा, कौन हेड करेगा? तो वो होगा हमारा कंपनी लिक्विडेटर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 288। सेक्शन नंबर 288 मतलब ये है कि हम लोगों को एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ओके, क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 288। ऑल्सो इसमें और भी क्या है कि ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। जो भी ऑर्डर दिया होगा ट्रिब्यूनल ने, कभी भी किसी भी टाइप के ऑर्डर की बात हो रही है, अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर को कभी भी मॉडिफाई कर सकता है। ओके, या रिव्यू दे सकता है उसके ऊपर। सेक्शन नंबर 289 इज नाउ ओमिटेड। अब आते हैं 290 में, ड्यूटीज। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है और लिक्विडेटर्स के क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं, इन सिंपल इन जनरल हम लोग जो समझते हैं वो सारी ड्यूटीज इनके पास है। अब लिक्विडेटर काम करता है किसके अंडर में? तो एनसीएलटी के अंडर में। और एनसीएलटी इज नाउ द डीम्ड ओनर ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि एनसीएलटी अब हमारा डीम्ड ओनर है और उसी के बेसिस पे, उसी के इन्फॉर्मेशन के बेस पे लिक्विडेटर काम कर रहा है, तो सारे काम एक ओनर जो कर सकता है वही सारे काम अभी लिक्विडेटर कर सकता है, क्योंकि एनसीएलटी को काम करने नहीं आएगा। एनसीएलटी के बिहाफ में यहाँ पर मैं लिक्विडेटर काम करने आता है, तो एनसीएलटी के लिक्विडेटर के पास सारी अथॉरिटीज हैं, सारे राइट्स हैं। अब आप जो जो सोच सकते हो मोस्टली वो सारे पावर्स और ड्यूटीज किसके पास होती हैं? वो सब पावर्स लिक्विडेटर के पास होती हैं। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं अपन। कैरी ऑन द बिजनेस फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द वाइंडिंग अप कमिटी, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी के बेनिफिशियल के लिए जो भी कम हो रहा होगा वो सारे कैरी ऑन, बिजनेस को कैरी ऑन करना किसका काम है? ऑफिशियल लिक्विडेटर का या कंपनी लिक्विडेटर का काम है। डू ऑल एक्ट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो यूज कंपनी सेल। अब ऑब्वियसली कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो उसमें कंपनी का सेल लगेगा, अगर होगा तो उस कंडीशन पे हम लोगों को कंपनी का सेल यूज करना भी अलाउड है। टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, हम ही लोग तो ओनर है, हम लोग कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। कंपनी को हम लोग को डायरेक्शन तो मिल ही चुका है एनसीएलटी के थ्रू कि हम लोग एज ए होल गोइंग कंसर्न के बेस पे उसको बेचें, हम लोग वो भी कर सकते हैं। टू रेज एनी मनी रिक्वायर्ड ऑन द सिक्योरिटी, हम लोग उस मनी को रेज कर सकते हैं जो भी हमने सिक्योरिटी के लिए रखा। तो ये दैट इज थोड़ा क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस कि हम लोग अब बाइंडिंग अप के पोजीशन में आने के बाद भी हम लोग अपनी मनी थोड़ा बहुत रेज कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को बचाने के लिए, सॉरी सिक्योरिटी के बेस पे।
टू डिफेंड एनी सूट, हम लोग सूट को बचाने के लिए भी डिफेंड कर सकते हैं. टू सेटल क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स, टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड एंड रिटर्न ऑफ द कंपनी, टू प्रोवाइड रैंक एंड क्लेम. ये अलग पॉइंट, ये पॉइंट बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आईबीसी से कनेक्ट करता है कि हम लोग यहाँ पर हम लोग एक रैंकिंग फिट करेंगे कि किस रैंक के बेसिस पे और किस कैटेगरी वाइज हम लोग किस ऑर्डर से अपने कॉस्ट को कंपेल करेंगे, किसको किसको पहले दिया जाएगा, कौन से क्लेम को पहले सेटल किया जाएगा, ये सारी चीजें हम लोग कब किसको डिलीवर करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं लिक्विडेटर ही डिसाइड करेगा. टू ड्रॉ, एक्सेप्ट, एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट एंडोर्स कर सकते हैं, या एक नया ड्रॉ कर सकते हैं, या कोई ड्रॉ कर रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं. So that all will be done by the official company liquidator. To obtain any professional assistance from any person, किसी भी पर्सन से, एक प्रोफेशनल पर्सन से हम लोग उसका असिस्टेंस ले सकते हैं. हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें कोई डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी, तो कंपनी लिक्विडेटर किसी का हेल्प ले सकता है. To apply to the tribunal for such order, direction of winding up, direction of winding up के लिए अप्लाई कर सकता है. ये भी कौन कर सकता है? तो ट्रिब्यूनल. तो ये आप लोगों ने देखा था. सॉरी, कंपनी लिक्विडेटर एप्लीकेशन फाइल करता है कि हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करेगा कि कंपनी का लिक्विडेशन हो जाना चाहिए, वाइंडिंग अप हो जाना, डिसॉल्यूशन हो जाना चाहिए. The power exercised by the company liquidator shall be subjected to the overall control of the tribunal. Obviously, tribunal is the owner of the company, deemed owner of the company, and that's why this point is related to that section 283. That is, the power exercised by the company shall be subjected to the overall control of the tribunal. तो जो भी काम करेगा वो तो कंट्रोल किसके रहेगा? तो ट्रिब्यूनल के कंट्रोल में रहेगा. प्रोविजन फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंस ऑफ कंपनी लिक्विडेटर. तो ये भी कोई खास बताने लायक नहीं है मेरी तरफ से कि प्रोविजन ऑफ फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंस, हम लोग प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं. अगर हम लोग को जरूरत है कंपनी को थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखना है तो हम लोगों को प्रोफेशनल असिस्टेंस का अगर हेल्प लेना है, जिसका सीएमए, सीए और सीएस, इनमें से किसी का भी असिस्टेंस लेना होगा तो हम लोग उसको अपॉइंट कर सकते हैं. 292 एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर पावर्स. क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं कि कभी भी मीटिंग रख सकते हैं इन लोग. लिक्विडेटर क्या कर सकता है? तो कभी भी मीटिंग बैठा सकता है, और मीटिंग अपने मर्जी से कर सकता है, या फिर क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर के बोलने से कर सकता है. अब क्यों कंट्रीब्यूटर और क्रेडिटर्स के बोलने से कर सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि अकेला एक क्रेडिटर आएगा और कंपनी लिक्विडेटर को ऑर्डर देगा कि आप मीटिंग बैठाओ तो मीटिंग बैठ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा. अगर कंपनी को मीटिंग बैठानी है, कंपनी लिक्विडेटर को अगर कंपनी के मीटिंग के लिए अगर असिस्ट करना है, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर शुड बी नीडेड टू असिस्ट फॉर द to demand for the committee meeting. Books to kept by the company liquidator. तो कंपनी लिक्विडेटर के पास ऑब्वियसली राइट है, ड्यूटी है कि ये कंपनी के मिनट्स को और इन्फॉर्मेशन को, सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, और ये सारी चीजें उनके पास प्रेजेंट होनी चाहिए व्हेनेवर डिमांडेड बाय द एनसीएलटी और एनी अथॉरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वाइंडिंग अप, और आफ्टर दैट टिल देन, जब तक कि एनसीएलटी ने आपको बोला गया है तब तक के स्टोर रखना है, तब तक कि वो उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा. ऑडिट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर्स अकाउंट. देखो आप लोगों ने बोला था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है वो उसे सबमिट करना पड़ेगा, तो ये वही पॉइंट आ गया. तो 294 की जगह 294 के बेसिस पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम लोग को ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार सबमिट करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन, और वो ऑडिटेड होने के बाद. ठीक है, ये वही पॉइंट था. सेक्शन नंबर 295 पेमेंट ऑफ डेब्ट बाय द कंट्रीब्यूटरी एंड एक्सटेंट ऑफ द सेट ऑफ and members. Obviously पेमेंट ऑफ डेब्ट बाय कंट्रीब्यूटरी के थ्रू हमारे डेब्ट्स को, हमारी कंपनी बाइंडिंग अप के प्रोसेस का मतलब यही था कि हम लोग अपने सारे एसेट्स को पे करने हैं, सॉरी एसेट्स को बेचने हैं, और हमारी सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने हैं, सारे डेब्ट्स को पे ऑफ कर देने हैं. तो ये वही प्रोसेस है. हम लोग अब क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर सेट ऑफ की बात हो रही है कि कुछ कंट्रीब्यूटर्स होंगे और उसको पैसा देना है, और हमारे पास कुछ एसेट्स होंगे और उनके बेसिस पे हमें कुछ पे करना होगा. तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर सेट ऑफ करने का प्रोविजन है. In case of unlimited company, allow to contributors by way of set off money due to him. उसके ऊपर जो भी अमाउंट से बचा होगा, उनसे कुछ लेना होगा, तो उनके कंट्रीब्यूटर्स के ड्यू बेसिस के ऊपर हम लोग उस मनी को सेट ऑफ कर सकते हैं. उनसे कुछ लेना है और हमें उनसे कुछ देना है, तो वो आपस में सेट ऑफ किया जा सकता है. ठीक है, और बट इज इन द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी. In the case of limited company, allow directors, manager whose liabilities to be set off. और अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो उनके पास डायरेक्टर्स और मैनेजर के लायबिलिटी को अपन सेट ऑफ कर सकते हैं.
पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू मेक कॉल, अगर अनपेड अमाउंट है तो फिर कंपनी के जो ट्रिब्यूनल जो है वो क्या कर सकते हैं, कॉल को कॉल कर सकते हैं कि आपका इतना अमाउंट अभी भी अनपेड है तो आप हमारा अमाउंट पे करिए। तो ऑब्वियसली दैट इज पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, जो कंपनी का शेयर कैपिटल होगा लिमिटेड बाय द कैपिटल, तो कंपनी के पास कैपिटल अगर होगा तो ये पॉसिबल है कि आपका पैसा बचा हुआ है तो आपके पास एक ऑर्डर आ सकता है कि आप अपना अनपेड अमाउंट पे करें। एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, कंपनी कंट्रीब्यूटर्स का जो राइट होगा उसे एडजस्ट किया जाएगा। पावर टू ऑर्डर कॉस्ट, उनके पास पावर होगा कि कॉस्ट का ऑर्डर, ऑर्डर इन द सेंस यहाँ पर फिर अगेन सीक्वेंस की बात हो रही है कि सीक्वेंस किस सीक्वेंस में आपको पे किया जाएगा, आपको सीक्वेंस क्रिएट किया जाएगा किसको पहले पे करना है एंड किसको बाद में पे करना है। तो ये सारा सीक्वेंस, सॉरी कौन से खर्चे पहले पे करने हैं और कौन से खर्चे बाद में पे करना है, वो सारी चीजें हम लोग एक सीक्वेंस में क्रिएट करेंगे कि कौन से खर्चे होंगे। जैसे अपन ने आईबीसी में पढ़ा था कि कौन से एक्सपेंसेस, सबसे पहले कॉस्ट था, कौन सा कॉस्ट था, लिक्विडेशन कॉस्ट था। उसके बाद हम लोगों का सेक्शन 52 जो अप्लाई करता है और वेजेस 12 मंथ्स वाले, ये वाले थे। तो कुछ कुछ चीजें थी जो वहां पर अपन ने देखा था, वैसे ही एक सीक्वेंस यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 298 में बताता है कि पावर से हमारे पास कि हम लोग अब एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं कि कौन से कॉस्ट को पहले पे किया जाएगा एंड कौन से कॉस्ट को थोड़ा सा लेट। सेक्शन नंबर 299, पावर ऑफ एनसीएलटी टू समवन पर्सन। अब ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अपन लोग ओवर गो थ्रू करेंगे बस। पावर ऑफ एनसीएलटी टू समवन पर्सन, ओके। पावर ऑफ एनसीएलटी टू ऑर्डर एग्जामिनेशन ऑफ प्रोमोटर, प्रोमोटर और डायरेक्टर्स को एग्जामिन करने का ऑर्डर भी दिया जा सकता है बाय द एनसीएलटी। अरेस्ट ऑफ पर्सन ट्राइंग टू लिव इंडिया और लिव इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के समय में अगर हम लोगों का कोई भी पर्सन, अगर रिलेटेड पर्सन, इंटरेस्टेड पर्सन अगर कोई भाग रहा है तो ऐसे कंडीशन पे उस पर्सन को ऑर्डर, उस पर्सन को अरेस्ट करने की भी ये भी पावर्स है। डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल, अब ट्रिब्यूनल को क्या मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा, तो कंपनी लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन फाइल की किसको, एनसीएलटी को, कि अब हमारा सारा वाइंडिंग अप खत्म हो चुका है एंड दैट कंपनी इज लिटरली वोंड अप। अब कंपनी वोंड अप हो चुकी है, हमारे सारे एसेट्स बेच चुके हैं हमने और सारे लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया है, अब आप इस कंपनी का डिसॉल्यूशन का ऑर्डर पास कर दीजिए। तो कंपनी लिक्विडेटर इन्फॉर्म टू द ट्रिब्यूनल फॉर डिसॉल्यूशन, अब डिसॉल्यूशन का इन्फॉर्मेशन देगा एंड if tribunal is satisfied it may order for complete dissolution, और अगर वो satisfied रहे NCLT if deemed paid then it may order for the complete dissolution. Then company liquidator shall require to submit order of the tribunal to the ROC within 30 days of the order. ये भी अपन देख रहे हैं। Last point, appeal from order made before the commencement of this act, अगर कोई इस एक्ट के बनने के पहले मतलब 1956 में अगर कोई ऑर्डर दिया गया था बाइंडिंग अप का और वो ऑर्डर आने के बाद अब लॉ चेंज हो गया और हम लोगों का ये लॉ स्टार्ट हुआ, 2013 एक्ट स्टार्ट हुआ, तो भी ये एक्ट उस पर प्रिवेल करेगा। देन मतलब वो बाइंडिंग अप प्रोसेस इस बाइंडिंग अप प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, तो ये सेक्शन, ये पार्ट नंबर 1 के ऊपर डील किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके ऊपर में, पार्ट 1। तो ये हमारा सिर्फ पार्ट 1 खत्म हुआ है अभी। पार्ट नंबर 2 इज ओमिटेड, पार्ट नंबर 3 जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे एंड पार्ट नंबर 4 इज रिलेटेड टू द मतलब पार्ट नंबर 4 ऑफिशियल लिक्विडेटर के ऊपर होगा। तो पार्ट नंबर 4 अपन लोग लिक्विडेटर के ऊपर बात करेंगे। ये हमारे पास एक उसका भी चार्ट है जिस चार्ट के बेसिस पे अपन पार्ट नंबर 4 डील करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 था हमारा और ये है पार्ट नंबर 4 ऑफिशियल लिक्विडेटर। इस पार्ट में हम लोग को सिर्फ ऑफिशियल लिक्विडेटर की बात करनी है और ऑफिशियल लिक्विडेटर के सेक्शंस होंगे हमारे 359 से लेकर के 365 तक। अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग को फास्ट ट्रैक इशू के बारे में समझना है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप के साथ साथ अपन ने आईबीसी के अंदर भी फास्ट ट्रैक इशू के बारे में समझा था, तो बोल सकते हैं यहाँ पर भी वो ही एक कॉन्सेप्ट है, फास्ट ट्रैक इशू। अब जब हम लोग फास्ट ट्रैक इशू की बात करेंगे तो यहाँ कंपनी लिक्विडेटर गलती से भी अपॉइंट नहीं हो सकता, कंपनी के जगह यहाँ पर ऑफिशियल लिक्विडेटर को ही अपॉइंट करना जरूरी है। तो जब हम लोग बात करेंगे फास्ट ट्रैक इशू में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑफिशियल लिक्विडेटर को ही अपॉइंट करेंगे, कंपनी लिक्विडेटर का यहाँ पर रोल नहीं होगा। पिछले टॉपिक में अपन देख रहे थे कि वहां पर कंपनी लिक्विडेटर को भी अपॉइंट किया जा सकता है और ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। मोर ओवर प्रोविजनल लिक्विडेटर को भी किसी किसी सिचुएशन में अपॉइंट किया जा सकता था, बट इन द केस ऑफ पार्ट 4 की जब बात करेंगे और जब हम फास्ट ट्रैक इशू की बात कर रहे होंगे तब उस कंडीशन पे हम लोगों को
वो क्या बोलेंगे कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करना इज अ मस्ट, इज अ मैंडेटरी प्रोसेस एंड कंपनी लिक्विडेटर इज नो रोल हैज बीन गिवन देयर। तो यहाँ पर है करना क्या है, लिक्विडेशन। ठीक, यहाँ पर में हम लोग लिक्विडेशन की बात करेंगे, फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन। वहां पर अपन लोगों ने आईबीसी के अंदर पढ़ा था फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी, वहां पर में आपको इंसॉल्वेंसी होनी थी और यहाँ पर में आपको लिक्विडेशन होना है, लिक्विडेशन होना है और आपको यहाँ पर फास्ट ट्रैक इशू। आपकी कंपनी अब छोटी है, आपकी कंपनी अगर 1 करोड़ से कम के एसेट बिलोंग करती है, आप 1 करोड़ या उससे कम के एसेट्स हैं, उस समय भी अपने पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी, स्मॉल कंपनीज थी और बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज थी, ऐसे ऐसे कुछ कंपनीज थे जिन कंपनीज को हम लोग समरी प्रोसीजर में या फास्ट ट्रैक इशू में डाल सकते थे, इंसॉल्वेंसी में डाल सकते थे। यहाँ पर भी स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी का यहाँ डेफिनेशन रखा गया है 1 करोड़ या उससे कम के एसेट्स अगर आपके पास है तो आप स्मॉल कंपनी माने जाएंगे और आपके ऊपर फास्ट ट्रैक इशू अलाउ हो सकता है, फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन के आप एलिजिबल हो। तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है वाइंडिंग अप का, आप छोटी सी कंपनी है तो आप जल्दी से अपना काम निपटा करके आगे कंटिन्यू अपने वाइंडिंग अप प्रोसेस को डिमांड कर सकते हो। सो ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड ओनली हियर, ओके, ओनली अपॉइंटेड हियर, मतलब ये मतलब नहीं है कि वो यहीं पर अपॉइंट होगा, कहीं और नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनी लिक्विडेटर का काम नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ ऑफिशियल लिक्विडेटर को ही यूज किया जाएगा। सो सेक्शन नंबर 359 बोलता है, सेक्शन नंबर 359 का काम ये होगा, एप्लीकेशन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा, सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर तो है ही नहीं अभी तक कि वो यहाँ पर में फाइल करेगा। हम लोग क्या बात करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी ऑफिशियल लिक्विडेटर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कितने भी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लग रहा है तो। ठीक, तो ये भी एक बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में आ सकते हैं कि कितने ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी कर सकती है, तो एज मेनी एज सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंग्स फिट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना सही लग रहा है उतने वो नंबर ऑफ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है 100 कर देगी, ऐसा नहीं है, बट द पॉइंट इज कितने भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड की बात नहीं हो रही, वो कितने भी कर सकते हैं, जितना वो कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लग रहा है उतना। सेक्शन नंबर 360 बोलता है पावर ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर के पावर्स क्या हैं, वही सारे पावर्स जो कंपनी लिक्विडेटर के अपन पढ़े, वो सारे पावर्स, वो सारी ड्यूटीज किसकी भी होंगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर की होंगी। बेसिकली दोनों में कोई फर्क तो नहीं होता, लेकिन अब ड्यूटीज की बात अगर करेंगे तो सारे पावर्स किसके होते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर के वही होते हैं जो कंपनी लिक्विडेटर के थे, प्लस कंपनी लिक्विडेटर को आप असिस्ट करोगे, ये भी काम होता है किसका, ऑफिशियल लिक्विडेटर का, मॉनिटर करेंगे। सेक्शन नंबर 361। अब आते हैं मेन अपन लोग समरी प्रोसीजर फॉर लिक्विडेशन। ठीक, समरी मीन्स शॉर्ट में जल्दी से खत्म करने वाला, इसलिए इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी अपन लोग पढ़ेंगे, नेट एसेट अप टू 1 करोड़। अगर हमारे एसेट की बुक वैल्यू 1 करोड़ या उससे अंदर है तो हम लोग क्या होंगे, इस कैटेगरी में एलिजिबल होंगे। सच क्लास एज में बी प्रिस्क्राइब, या फिर ऐसे क्लास जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, और प्रिस्क्राइब मतलब कि आगे कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को और एक नई कंपनी एडिशनली आ सकती है। बट अभी तक तो 1 करोड़ या कम उससे अगर एसेट है अपने पास तो आपके कंपनी को लिक्विडेट होना पॉसिबल है ऑफिशियल समरी प्रोसीजर में, दैट इज फास्ट ट्रैक में। तो फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन शैल बी डन बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर ओनली, इट इज नॉट ओएफ, इट इज ओएल। आप इसको करेक्ट कर लेना, ऑफिशियल लिक्विडेटर का होना जरूरी है। तो फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन शैल बी डन बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर ओनली, सिर्फ ऑफिशियल लिक्विडेटर के बेस पे ही काम होगा, उसके अलावा दूसरे लिक्विडेटर के बेसिस पे काम नहीं होगा। एंड नॉट बाय द सीएल, कंपनी लिक्विडेटर। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ओएल, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल टेक एसेट इन द कस्टडी, अब ऑफिशियल लिक्विडेटर सारे एसेट्स को अपने कस्टडी में ले लेगा। सबमिट रिपोर्ट, अब ये जरूरी नहीं है कि आपका एसेट नेट एसेट 1 करोड़ या उससे कम है तो आप लिक्विडेशन समरी रिपोर्ट के हिसाब से, समरी प्रोसीजर के हिसाब से लिक्विडेशन होना आपको अलाउ हो ही जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से फ्रॉड में बिलोंग करते हो, फ्रॉड कैटेगरी में अगर आप आते हो, तो आपको फिर फास्ट प्रोसीजर में आपको एक लंबे छोटे टाइम की जरूरत है। देन आपको नॉर्मल प्रोसीजर जो अभी तक आपने जिसके पहले पढ़े उस प्रोसीजर के थ्रू आपको बिलोंगिंग माना जाएगा एंड आपको उसी के थ्रू बाइंडिंग अप किया जाएगा। तो उसके लिए आपके पास एक रिपोर्ट होना चाहिए, जो रिपोर्ट कौन बनाएगा, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाएगा। तो उसी रिपोर्ट की अपन बात कर रहे हैं।
सबमिट रिपोर्ट, ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल सबमिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 30 डेज। आपको 30 दिन के अंदर एक रिपोर्ट बनाना है, और वो रिपोर्ट से अगर पता चलता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट कंपनी इज इन फ्रॉड, अगर उस रिपोर्ट से पता चला कि कंपनी इज इन फ्रॉड, ठीक, अगर वो कंपनी फ्रॉडी है और वो पता चल रहा है, देन दिस सेक्शन विल नॉट प्रिवेल एंड नॉर्मल प्रोविजन मीन्स फुल सेक्शन विल अप्लाई। तो फिर नॉर्मल प्रोविजन मतलब अभी तक जो पढ़े थे वो सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक। सेक्शन नंबर 362, सेल ऑफ एसेट्स एंड रिकवरी फ्रॉम द डेब्ट। एसेट को बेचना होगा और अपने सारे के सारे लायबिलिटीज को पे करना होगा, और सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स क्रेडिटर्स, और अपने सारे के सारे क्रेडिटर्स को पे करना होगा। सॉरी, यहाँ पर में था सेल ऑफ एसेट्स एंड रिकवरी फ्रॉम द डेब्ट, डेब्ट मींस डेटर्स हियर, एंड द नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपने सारे लायबिलिटीज को भी पे ऑफ करेगा। तो बस यही था देखा जाए तो, बट अपन लोग सब चार से समझेंगे बचा हुआ चीज कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करेगी, अपॉइंट करेगी ऑफिशियल लिक्विडेटर को। अगर हम कंपनी है, हम लोग कंपनी और कंपनी ने अप्लाई किया कि हम लोग को फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन में आना है, समरी प्रोसीजर में आना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डिस्कस करेगी और सही लगेगा तो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, तो अपॉइंट करेगी ऑफिशियल लिक्विडेटर को। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जा सकता है, तो नहीं, यहाँ पर मैं कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लिक्विडेटर को ही अपॉइंट करेगी। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्यों अपॉइंट होगा, तो वो क्या काम होंगे, तो उनके सारे काम होंगे जो अपन लोगों ने कंपनी लिक्विडेटर के बारे में पावर्स में पढ़े थे, और वही सारे काम ऑफिशियल लिक्विडेटर भी करेगा। प्लस वो कंपनी लिक्विडेटर अगर कोई है तो उन्हें असिस्ट करेगा, मॉनिटर करेगा। ओके, देन ऑफिशियल लिक्विडेटर विल विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक, ऑफिशियल लिक्विडेटर 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा। ठीक, कौन सा रिपोर्ट देगा, सबसे पहला ये कि क्या कंपनी किसी फ्रॉड में है या नहीं है। तो अपन यहाँ पर देखें कि सबसे पहले एक रिपोर्ट दिया जाएगा 30 दिन के अंदर, कौन सा रिपोर्ट, कि इससे ये पता चलेगा कंपनी फ्रॉड में है या नहीं है। कंपनी फ्रॉड में है तो यहाँ पर यही स्टॉप हो जाएगा, एंड वी आर लिएबल फॉर द ऑल प्रोसेस विच वी ऑलरेडी डन इन द पार्ट 1। ओके, अगर नहीं है तो अपन कंटिन्यू करेंगे, एंड इन्फॉर्म डेटर टू पे देयर ड्यूज, और आपको बोला जाएगा कि आप डेटर को इन्फॉर्म करो कि आप अपने सारे के सारे लिस्ट बताओ और आप हम लोगों को टाइम पे करो। और ये आपको कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, 30 दिन के अंदर ये सारे काम लिक्विडेटर को करने। तो लिक्विडेटर का काम होगा कि 30 दिन के अंदर सारे डेटर्स को इन्फॉर्म करो और उनके ऐसे उनको बोलो कि आपको अपने सारे ड्यूज को पे करना है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म क्रेडिटर्स, जैसे आपने डेटर को इन्फॉर्म किया वैसे क्रेडिटर को इन्फॉर्म करना है कि आप अगले 30 दिन के अंदर अपनी अपनी लिस्ट हमें प्रोवाइड करो और वो सारी चीजें हमें प्रेजेंट करो, ठीक, और हम लोग उसका अमाउंट आपको पे करेंगे। इफ क्रेडिटर्स क्लेम इज नॉट एडमिटेड, अगर आपका कोई क्लेम एडमिट नहीं किया गया, ठीक है, अगर आपका कोई भी क्लेम एडमिट नहीं किया गया बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर, देन यू आर फ्री टू अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली। आप किसको अपील करोगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करोगे, ठीक है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंग्स फिट वैसा वो ऑर्डर ऑफिशियल लिक्विडेटर को देगी और उसके बेसिस पे फिर वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अब उस सारे प्रोसेस होने के बाद, आपका सारा काम करने के बाद, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर वाइंडिंग अप के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन फाइल करेगा किसको, दिस सॉल्यूशन का एप्लीकेशन फाइल करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, ये किसने दिया एप्लीकेशन, ऑफिशियल लिक्विडेटर ने दिया। किसको दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम, सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक ऑर्डर देगी, किसको किसको देगी, एनसीएलटी को भी देगी और ऑल्सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी देगी। एनसीएलटी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप अब डिसॉल्व करो इस कंपनी को, प्रोसेस शुरू कर दो, एंड आरओसी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप इस कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में से स्ट्राइक ऑफ कर दो। ठीक, तो बस ये प्रोसेस था हमारा किसका, ऑफिशियल लिक्विडेटर का, और यही सेक्शंस वाइज थे और इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं है। ऑफिशियल लिक्विडेटर के केस में हम लोग को समझ पढ़ना होता है क्या, समरी लिक्विडेशन का। समरी लिक्विडेशन में आप लोग क्या समझते हैं कि जल्दी से काम हो जाएगा, शॉर्ट में काम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी छोटी है। तो कंपनी छोटी है इसका मतलब हम ये नहीं कि फ्रॉड कर लेंगे और यहाँ से समरी प्रोसीजर के होते हुए थ्रू यहाँ से बढ़ जाएंगे, बट इसके लिए भी ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करने के बाद सबसे पहले 30 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इस कंपनी के बारे में पता करो। इज ए टाइप ऑफ ब्यूरो रिपोर्ट, एक टाइप ऑफ ब्यूरो रिपोर्ट यहाँ पर बनाओ। यहाँ पर ब्यूरो रिपोर्ट बोलेंगे तो नहीं, बट इज ए टाइप ऑफ ब्यूरो रिपोर्ट। एक रिपोर्ट देना पड़ेगा कंपनी क्या, इस कंपनी में अभी कोई फ्रॉड चल रहा है या कंपनी फ्रॉड के लिए तो ये ऐसा कुछ काम नहीं कर रही है।
ऐसा रिपोर्ट। बट इफ कंपनी इज क्लीन तो कंपनी ऑफिशियल लिक्विडेटर आगे प्रोसीड करेगा और 30 दिन के अंदर डेटर्स को क्लेम करेगा कि अब अपना अमाउंट पे करिए, और अपने क्रेडिटर्स का क्लेम एक्सेप्ट करेगा। 30 दिन में अपने को मतलब 30 दिन के अंदर क्रेडिटर को बताना है और उसके अगले 30 दिन के अंदर एक्सेप्ट क्लेम करना है। अगर क्रेडिटर का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया गया तो क्लेम इज फ्री टू कंप्लेन अगेंस्ट द ऑफिशियल लिक्विडेटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट फिर एडजुडिकेटिंग सॉरी एनसीएलटी के बेसिस पे, ट्रिब्यूनल के बेसिस पे फिर ऑर्डर देगी कि क्या करना है वैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा फिर अब ये एक्सेप्ट सॉरी अब ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम है। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर एप्लीकेशन फाइल करेगा कि अब ये वाइंडिंग अप का सारा काम खत्म हो चुका है और अब आप एप्लीकेशन हमारी इस एप्लीकेशन के बेस पे आप डिसोल्यूशन कर दीजिए इस कंपनी का। अब डिसोल्यूशन का ऑर्डर मिलने एप्लीकेशन मिलने के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पढ़ेगी और अगर वो उसको उनको सही लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब 2 टाइप का ऑर्डर देगी, 2 अलग अलग पर्सन को। एक है एनसीएलटी और एक है आरओसी। एनसीएलटी को ऑर्डर देगी कि आप अपना डिसोल्यूशन का प्रोसीड करो और आरओसी को ऑर्डर देगी कि आप कंपनी का नाम अपने लिस्ट में से, अपने रजिस्टर में से स्ट्राइक ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस था और इसके कुछ कुछ सेक्शंस थे यहाँ पर में, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में सीरियसली कुछ भी नहीं है, मतलब इस पार्ट 4 में तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं है। अभी हमारा पार्ट नंबर 3 बचा हुआ है क्योंकि पार्ट नंबर 1 हो चुका है, पार्ट नंबर 4 हो चुका है, पार्ट नंबर 2 तो वैसे भी ओमिटेड है। अब जाने से पहले अपन इसे क्लोज करने से पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि कौन सा बाइंडिंग अप का पार्ट नंबर 1 का प्रोसेस अपन एक बार फिर से शॉर्ट में ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले अपन लोग देखे थे कि 4+1 लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, या आगे पीछे है, ये अपना सेक्शन वाइज नहीं है, ये पूरा एक प्रोसेस है। अब सेक्शन नंबर 272 के बेसिस पे अपन लोग देखे थे कि 4+1 मेंबर्स हैं जो इनिशिएट कर सकते हैं। कौन कंपनी इटसेल्फ, आरओसी, एनी अदर सॉरी आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रीब्यूटर्स, ये 4 पर्सन थे जो अपील कर सकते हैं, अप्लाई इनिशिएट कर सकते हैं, एंड एनी अदर पर्सन +1। ये सब होने के बाद इन लोगों ने फाइल किया और साथ साथ इन्होंने किसको फाइल करना है, तो 4 लोगों को फाइल करना है। किसको एनसीएलटी को फाइल करना है और नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स को भी फाइल करना है और कंट्रीब्यूटर्स को भी फाइल करना होगा और प्लस आरओसी को भी। अब आरओसी का काम क्या है, आरओसी का काम है कि 60 डेज के अंदर रिव्यू देना कि क्या हमारे प्रोसेस के साथ, क्या कंपनी के साथ प्रोसीजर है, अब तो करना है या नहीं करना है, कितने दिन टाइम लगेगा और क्या होगा, सारा इन्फॉर्मेशन अब कंपनी को कौन देगा, तो आरओसी देगा। एनसीएलटी को कौन देगा, तो आरओसी को देगा। अब एक और पॉइंट यहाँ पर में था कि अगर कंपनी ने अप्लाई किया है, खुद से अप्लाई किया है, एसआर पास करने के बाद कंपनी के थ्रू अगर आया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन पे आपको अपने पिटीशन के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देना होगा जो कि 15 दिन से पुराना नहीं होगा। वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसको सबमिट करना पड़ेगा, अपन लोगों ने नाम देख लिया। आरओसी को भी देना पड़ेगा, आरओसी कितने दिन के अंदर अपना रिव्यू देगी, तो 60 डेज के अंदर देगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक चीज और देखे थे कि अगर कंपनी के अलावा किसी और ने पिटीशन फाइल की थी तो ऐसे कंडीशन में एनसीएलटी हमको एक ऑर्डर, कंपनी को एक ऑर्डर दे सकता है कि आपको ऑब्जेक्शन अगर है तो आप अपना ऑब्जेक्शन हमें प्रेजेंट कीजिए, या फिर सॉरी और साथ ही साथ हम लोगों को अपने डेटाज और अपने इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें सबमिट करिए। ठीक है, अब आपको 30 दिन के अंदर ये टाइम था, आपके 30 दिन के अंदर ये सबमिट करना है। अगर आपने 30 दिन के अंदर सबमिट किया, आपको अगर आप खुद पिटीशन फाइल कर रहे हो तो आपको तो साथ ही में करना है, बट अगर आपको किसी और के थ्रू पिटीशन फाइल हो रही है और आपको अगर ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप अपना ऑब्जेक्शन अगर रखना चाहते हो तो ऑब्जेक्शन रखो और साथ में डॉक्यूमेंट भी हमें भेजो, तो उसके लिए कितना टाइम दिया गया है, आपके पास 30 डेज का टाइम दिया गया। आपने 30 डेज के अंदर किया तो ठीक, नहीं तो आपके लिए एक और एडिशनल 30 डेज है, पॉसिबल है, आप एक्सटेंशन मांग सकते हो। बट अगर आपने इस 30 डेज में भी काम नहीं किया तो आपको एडिशनल 30 डेज में अपने फाइल को ऑडिट कराने के बाद उसे सबमिट करना पड़ेगा कंपल्सरीली, एंड सारे कॉस्ट आपको ही बियर करने होंगे। अब जैसे ही ऑर्डर आपको एनसीएलटी को मिला, अब एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा। एनसीएलटी के ऑर्डर्स कितने थे, वो फिर अगेन 4+1 के ऑर्डर्स थे। 4+1 ऑर्डर में से सबसे पहला ऑर्डर कौन सा होगा, तो डिसमिस करने का। आपके पिटीशन को डिसमिस किया जा सकता है, दूसरा आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जा सकता है, तीसरा इंटरिम ऑर्डर दिया जा सकता है, या चौथा प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जा सकता है। एंड द +1 विल बी इज एनी अदर। बट उधर के अदर और इधर के अदर में कुछ फर्क था। एक अदर में है एनसीएलटी ट्रीट करती है और एक ऑर्डर अदर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डील करती है। अब अपन को देखना होगा कहाँ पर मैं एनसीएलटी और कहाँ पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट। आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। नेक्स्ट, जैसे ही ऑर्डर आएगा हमको क्या करना होगा, उसे इंटीमेट करना होगा। ठीक है, जो भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर हमें इंटीमेट करना होगा।
respectively to the provisional director or the company liquidator, sorry, provisional liquidator or company liquidator, and also to the ROC. अगर हम लोगों ने ऑफिशियल लिक्विडेटर किया तो ये हमारे प्रोसेस का पार्ट नहीं है, और अगर हम लोगों ने कंपनी लिक्विडेटर का कंटिन्यू किया है तो ऐसे कंडीशन पे और कंपनी लिक्विडेटर को बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो हमें सबमिट करने पड़ेंगे। सबसे पहले 3 हफ्ते के अंदर बाइंडिंग ऑफ कमिटी का एप्लीकेशन फाइल करना है कि हमें बाइंडिंग ऑफ कमिटी बनानी है। उसके बाद 60 दिन के अंदर ब्यूरो रिपोर्ट देना है, जो कि लाइफ टाइम एक ही बार होगा। अब हमारी कमेटी बन गई होगी और कमेटी का मीटिंग हो चुका होगा, तो उसका मिनट्स और सारे इन्फॉर्मेशन तैयार हो चुके होंगे, तो उसको मंथली हम लोगों को सबमिट करना होगा, किसको, एनसीएलटी को। प्लस क्वार्टरली भी हमें इन्फॉर्मेशन देना होगा। प्रोग्राम जो हमारा है वो प्रोग्राम का जो भी डेटा होगा वो सारे इन्फॉर्मेशन हमें किसको देने हैं, एनसीएलटी को देने हैं क्वार्टरली बेस के ऊपर। हमारे जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग को साल में 2 बार सबमिट करने पड़ेंगे। किसको करने पड़ेंगे, तो एनसीएलटी को सबमिट करने पड़ेंगे। ये सब होने के बाद हम लोग को एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। कंपनी लिक्विडेटर एक फाइनल ड्राफ्ट बनाएगा और वो पहले किसको प्रेजेंट करेगा, तो वो बाइंडिंग ऑफ कमेटी को प्रेजेंट करेगा। बाइंडिंग ऑफ कमेटी वहां पर क्या करेगी, सैंक्शन करेगी, अप्रूवल देगी। अप्रूवल देने के बाद वो ऑफिशियल कंपनी लिक्विडेटर किसके पास लेके जाएगा, तो फिर कंपनी लिक्विडेटर के पास लेके जाएगा। ठीक है, कंपनी लिक्विडेटर के पास लेके जाएगा और उसके बाद सब कुछ होने के बाद एंड की बात अगर है तो फिर एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि हम लोग सारा बाइंडिंग का प्रोसेस खत्म कर चुके हैं और आप अब उसको क्या करिए, डिसॉल्यूशन का ऑर्डर दे दीजिए। इन सब प्रोसेस के बीच में जब ये कंपनी लिक्विडेटर सारे काम कर रहा होगा तब उसी बीच में एनसीएलटी एक डायरेक्शन भी दे सकती है। कौन से डायरेक्शन दे सकती है, तो 3 डायरेक्शन दे सकती थी। पहला डायरेक्शन क्या था कि आप अपने कंपनी में सेल्स कमेटी बनाएं। दूसरा कि आप डिसॉल्यूशन का एक एजेंडा फिक्स करें और उस कितने दिन में खत्म हो सकता है ये हमें बताएं, या फिर हम एक बताते हैं कि कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए। द थर्ड वन इज आप अपने इस कंपनी को वॉलंटरी पूरा गोइंग कंसर्न के बेस पे बेच सकते हैं। एज ए गोइंग कंसर्न यू शुड सेल, यू कैन सेल। आप अपने इस कंपनी को गोइंग कंसर्न के बेस पे सेल कर सकते हो। ठीक है, और ये सब होने के बाद एप्लीकेशन दिया गया किसके थ्रू, कंपनी लिक्विडेटर के थ्रू। किसको दिया गया, एनसीएलटी को दे दिया गया। और एनसीएलटी इफ थिंग्स फिट और सब कुछ सही लगता है कि बॉन्डिंग अब सही हुआ और सब सही तरीके से हुआ है, सारा काम सही तरीके से हो चुका है, now it is required by the NCLT to give an order to the company and the company liquidator। तो कंपनी लिक्विडेटर को एक इन्फॉर्मेशन आएगा कि अब इस कंपनी को लिक्विडेट किया जा रहा है, अब ये इसका आगे प्रोसीड किया जाए। अब लिक्विडेशन होने के बाद, ऑर्डर मिलने के बाद, ऑर्डर जैसे ही मिलेगा हमें, तो वो ऑर्डर हमें किसको देना है, तो आरओसी को 30 दिन के अंदर ऑर्डर सबमिट कर देना है। ये पूरा प्रोसेस था किसका, लिक्विडेशन का। अगर हमारी कंपनी को वाइंडिंग अप में जाना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिब्यूनल, दिस इज द पार्ट। अगर हम लोग बात करेंगे वॉलंटरी लिक्विडेशन की, तो वो हम लोग यहाँ पर में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ पर में ओमिट हो गया। तो जब भी हम लोग को वाइंडिंग अप के बाय द ट्रिब्यूनल के बाद, अगर वाइंडिंग अप बाय द कौन सा वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात जब भी होगी, तो हमें अंडर कंपनीज एक्ट में डिस्कशन कभी भी नहीं देना है। हम लोगों को कंक्लूजन हमेशा देना होगा अंडर द आईबीसी कोड, मींस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के बेस पे ही आंसर देना होगा। ओके, सो तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। आपको जो भी डाउट्स होंगे वो आप डाउट कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज, आपको कोई भी नोट्स चाहिए होंगे तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा या फिर मेरे फेसबुक पेज से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका भी आपको लिंक वहाँ पर मैं प्रेजेंट कर दूंगा और आप वहाँ से जाकर के सीधा आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपडेट for updated and the next videos. Stay at home, stay safe. Thanks for watching.